Very good afternoon to all of you, beta. We are going to start today with chemical kinetics. Chemical kinetics. So if you see, the word is divided into two parts: chemical and what? Kind. So, beta, whenever we talk about chemical, means we are going to study with respect to what? Chemical reaction. We are going to study with respect to chemical reaction. वहां पे मत देखो, पहले यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ. Kinetics मतलब फिजिक्स में आपने पढ़ा रहेगा. Kinetic is anything which is related to what? Motion. It is related to what? Motion. Okay. So when I'm talking about chemical reaction, so basically kinetics of chemical reaction. So basically we want to study about what? Speed of the reaction. What we want to study about? But in chemistry, instead of the word speed, what word we use? Rate. What word we use? Rate. So in this chapter, we are going to study about what? Rate of chemical reaction. Basically speed. But speed will depend on what? It will depend on certain factors or not, tell me. Okay. Agar mujhe now in this beta, I have to do two things. I want to even increase the rate of reaction or I want to decrease the rate of reaction. Tell me beta, now you only tell me. Okay. So in this chapter, first of all, what is chemical kinetics? Chemical kinetics is the branch of chemistry which deals with what beta? Rate of chemical reaction and factors affecting the rate of chemical reaction. And factors affecting the rate of chemical reaction. Clear? So what is chemical kinetics? It is a branch of chemistry which deals with the study of the rate of chemical reaction and factors affecting the rate of chemical reaction. Now, can you tell me, beta, in which case the reaction will take place faster? If I take dilute HCl and zinc, and if I take concentrated HCl and zinc. So rate of reaction depends upon what? Concentration. So rate is directly proportional to concentration or not, tell me. Okay. Now, certain reaction for gases, we don't use the word concentration. What word are we use? Pressure. What word we use? So there are two containers. Okay. I have taken reactant in them. And in first container, for gaseous reaction to happen, what should happen? The gases should collide with each other. The bond between them should break. A new bond should be formed or not, tell me. Okay. So if I have taken two containers, in one container I am applying pressure of 1 atmosphere. In second I am applying pressure of 5 atmosphere. So where the collision will be more between the reactant when I am applying pressure of 1 atmosphere or when I am applying pressure of 5 atmosphere. बोलो 5 apply करेगा तो और नजदीक आएगा कि नहीं बोलो बेटा. So rate of reaction is directly proportional to pressure. Rate of reaction is directly proportional to pressure. Okay. Now I'm carrying out one reaction at room temperature and one reaction at higher temperature. So in which case the rate of reaction will be faster? Room temperature or higher temperature? Higher. Why? अगर temperature high करेंगे तो reactant का speed बढ़ेगा, तो collision बढ़ेगा, so the bond breaking will be faster. So rate of reaction is directly proportional to what? Temperature. Can you name one substance which can increase or decrease the rate of reaction? Catalyst. So rate of reaction also depends upon what? Catalyst. A catalyst is a substance which alters the rate of chemical reaction. It alters the rate of, it can either increase or decrease. ये जो increase करेगा अर्जुन उसको क्या बोलेंगे? Which catalyst? जो increase करता है उसको क्या कहते हैं? Positive catalyst. हाँ. जो decrease करेगा उसको क्या बोलेंगे? Negative catalyst. Clear? अच्छा, have you ever heard about Mannat beta, right? Yeah. Have you ever heard about photochemical reaction? What do you understand by this word photochemical? Very good, beta. When chemical reaction happens under the light. Okay. Now, suppose, beta, if I make you stand under normal tube light, and if I make you stand under halogen, the light which they use in stadium. So where, we will receive more heat in normal tube light or halogen. Okay, so what happens, beta? So I am increasing the intensity of the light. So rate of chemical reaction, if it is a photochemical reaction, it will depend on what, beta? Intensity. It will depend on intensity. So what is chemical? First of all, what is the chemical kinetics? It is a branch of chemistry which deals with the study of rate of chemical reaction and factors affecting the rate of chemical reaction. And what are the different factors we have studied? Come on, tell me. चलो अभी आ जाते हैं इधर पे. अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट तुम लोग का नोट्स मुझे देना पड़ेगा. ये रहो. ठीक है. ओके. तो चलो बेटा, व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? ओके.
Study of rate of chemical reaction and factors affecting the rate of chemical reaction. What are the factors affecting the rate of chemical reaction? Look here, we have written here. Come on. Okay, factors affecting the rate of chemical reaction. First, rate of reaction is directly proportional to, bolo beta, temperature. We did. Rate of reaction. R means rate of reaction. R means what? Hey, Shriya Gangwani, यहाँ पे ध्यान दे बेटा, टाइम पास नहीं ना. Ha 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 ha. Okay, okay. Rate is directly proportional to what? Temperature. It is directly proportional to. It is directly proportional to. It also depend upon. It also depend upon. Now I have given you a big piece of zinc metal, and let us say the weight of that is 10 grams, and I have given you 10 grams of powder zinc. I have given you 10 grams of powder zinc. So Arjun beta, who will react faster? Who will react faster? 10 gram of 10 gram of phone बाहर नहीं रखने का है. दे दे phone दे नहीं कर. 10 grams of big piece of zinc or 10 gram of powder zinc. Tell me. Sorry बेटा. अरे बोलो ना कौन जल्दी रिएक्ट होगा? 10 ग्राम ऑफ, बोलो. पाउडर. वाई पाउडर बनाएगा तो क्यों जल्दी रिएक्ट होगा? टेल मी वाई. टेल मी. हेलो. वाई पाउडर? अरे बोलो ना भाई. सरफेस एरिया विल इंक्रीज. सपोज बेटा आई गिव यू, suppose this is my 10 gram initially. This much big it is, right? Okay, now if I'm breaking it, now earlier how much surface was available? This much, this, and this. But if I break, then what will happen? Can you see two more faces are coming? So surface area is increasing or not? Tell me. Hello. Yes, sir. Very good. Appreciate it. Okay. So it is directly proportional to what, beta? Surface area. ए तो मतलब क्या सीखा इससे? Size. It is inversely proportional to size. Inversely proportional to size ना, size जितना छोटा होगा उतना है, लेकिन दोनों का weight क्या होना चाहिए? Same. Clear? Now, one point you have to remember, beta. This will come for MCQ. For every 10-degree rise in temperature, rate of reaction becomes how much? Double. Rate of reaction becomes what? Double. For every 10-degree rise in reaction. Dun, dun, dun. Okay, now look, beta. My initial, suppose my reaction is starting from 10 degree, and if I increase the temperature to 50 degree, what will be my rate of reaction? So, chalo beta, for every 10 degree, how much it increases? Bolo, it becomes. तो 10 से मैं 20 जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? डबल. 20 से 30 जाऊंगा तो और डबल हो जाएगा कि नहीं? देन 30 to 40 अगेन इट विल डबल अप और नॉट. टेल मी. तो सपोज यहाँ पे मेरा रेट कितना होता था? आर. इनिशियल लेट अस से माय रेट इज हाउ मच बेटा? आर. सो हियर इट विल बिकम 2r. हियर इट विल बिकम डबल. तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना हो जाएगा? एंड हियर हाउ मच इट विल बिकम? So beta, you have to see the initial point and the final point, and you have to see how many arrows are there. If the interval is of how much beta? 10 degrees. If the interval is of how much? तो यहाँ पे कितना एरो बनेगा? बोलो बेटा. 1, 2, 3, 4. So can I say my rate of reaction will become how much? 2 raised to n times. चलो श्रिया गंगवानी, 2 raised to 4 is how much बेटा? एक आंसर आया कि नहीं? It will become 16r or not? Tell me. Okay, suppose बेटा Kiku, if I tell you from 0 to 50 degree, तो क्या होगा? बोल बे. छिंगे बोल बे. 0 to 50 डिग्री का तो रेट कितना होगा? हाँ, 5 टाइम्स. मतलब 2 raised to 5. 5 टाइम्स नहीं होगा ये रेट. 2 raised to 5 टाइम्स होगा. समझा के नहीं? It will become how much? 32. Is this clear? This type of MCQs are there, beta. Clear? And I have given you this also. Look here. There you go. For every 10 degree rise in temperature, what will happen? Rate of reaction will become. So 10 to 50. If it, बेटा वो बॉटल है ना, तेरे को ना सिर पे है ना मारेगा भी. मैं समझा ना? टाइम पास मत कर. Rate becomes how many times? 16 times. So 2 raised to 4 times. So n is what number of times the temperature is increased. Clear? Okay. Now I want to define what is rate of reaction. What is rate of? अच्छा बेटा, पूरे चैप्टर में हम लोग जब भी बेटा, whenever I write A and I write here B, A and what I write here B. बॉटल दे दे मेरे को. बॉटल दे दे. A means reactant. A will be what beta? Reactant. A is what your reactant.
In entire chapter, whenever I write A is what your reactants, B is what your products. अच्छा बेटा आपको पता है इन लोअर स्टैंडर्ड यूर स्टडीड हाउ डू वी राइट कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है बोलो. मोलार कॉन्सेंट्रेशन या कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं बोलो बेटा. ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं. क्या लिखते हैं. तो अगर मैंने ऐसा लिखा कॉन्सेंट ये स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ए मींस किसका कॉन्सेंट्रेशन बोलो. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ बी मींस व्हाट बेटा. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. इतना समझा. So whenever I use square bracket means what? Concentration. Molar concentration. We express it in moles. Okay. I have given you this much big piece of zinc metal. Which metal? Zinc. Zinc metal. चलो this is zinc metal and इसका weight कितना है बेटा 10 grams है. कितना है. And I'm making it react with HCl. So what will be the product form? Tell me beta. ZCl2 and hydrogen. Very good beta. So this is my balancing के लिए लिख दिया यहाँ पे. Okay. अच्छा this is my reactant or not? Tell me. This is what my. This side is product. This side is what? Product. Okay. What is my अच्छा reactant को how do we express A? तो A ऐसा लिखा तो ये क्या हो जाएगा बोलो बेटा. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. अगर मैंने यहाँ पे लिखा 1 सो इट इज व्हाट बेटा. इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तो मैंने क्या लिया था. प्रेशर जिंक लिया था. कितना लिया था. 10 ग्राम्स लिया था. तो अच्छा जब रिएक्शन नहीं स्टार्ट होगा तो प्रोडक्ट बनेगा क्या. तो B1 कितना हो जाएगा. 0. 1 means initial. Suppose I am carrying out this reaction for how much beta. 10 minutes. So initial my time was what. T1 was 0. This is when T1 is 0. Suppose I am carrying out this reaction till 10 minutes. Okay. 10 minutes. चलो. तो व्हाट विल हैपन टू दिस जिंक बेटा. धीरे धीरे बढ़ेगा या कम हो जाएगा. रिएक्टेंट कभी भी रिएक्शन में व्हाट हैपेंस टू द रिएक्टेंट. विल इट इंक्रीज और डिक्रीज. It will decrease. So let us say it becomes how much. 2 grams. It will become how much. Acha, I mean, what will happen to the product? Let us say hydrogen initially when reaction. So this was everything I have written here. This was what beta. Initial. And this is what. Final. This is what. So this was initial and this is what. Final. So now your final beta. Let us say hydrogen का bubbles बनेगा ना. Hydrogen gas is evolved. So what you'll see bubbles of hydrogen or not? Tell me. तो जब टाइम कितना हो गया. लेट अस से 10 मिनट्स मैंने किया. व्हेन आई डिड टाइम हाउ मच बेटा. 10 मिनट्स. ओके व्हेन टाइम वाज डन हाउ मच बेटा. किया बेटा सो मच. चलो बेटा. तो अभी लेट अस से 50 बबल्स बना. क्या बना. 50 bubbles of hydrogen. So beta, if I am carrying out this reaction in transparent vessel, I have given transparent vessel, I have added zinc to it and HCl to it. How will you come to know the reaction has started? What will happen? You will see the bubbles of hydrogen. And what will happen to the size of the zinc? It will go on. So during chemical reaction, what happens to the reactant? Reactant increases or decreases? And product increases. Suppose if I want to find the rate, in this chapter, we are going to find rate in terms of both reactant as well as product. Reactant as well as product. Okay, so for reactant, how we write beta. Rate. If I want to find the rate, look, I have written this is reactant side and this is which side. Product. कौशल बेटा रेट अगर मैं लिखते हैं तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है. फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन. बराबर है कि नहीं. टाइम इंटरवल या टाइम टेकन. बराबर है. चले हीरो इधर मेरे को बता. यहाँ पे फाइनल कितना है तेरा. यहाँ पर कहो इधर देखना. इधर कौश फाइनल कितना है रिएक्टेंट का. A2. इनिशियल कितना था. टाइम कितना था फाइनल. T2 it is T2. ठीक है राइट. And T1. Okay. It's same if I write for product then it will be how much. Tell me Shriya how much it is. Product it is what. T2 minus B1 and time will be what. T2 minus. अच्छा बेटा when I solve this. अच्छा in maths you have studied ना बेटा. Whenever you study in maths x2 minus x1 what we write delta x or not. Tell me. You write delta x or not. Tell me.
So A2 minus A1 को what you will write? Very good, delta A. And T2 minus T1 what you will write? But मुझे यहाँ पे माइनस आया, काहे को? I got which sign? Minus sign. I got which sign, Prashant? Minus. Right? Why? But you tell me why I got minus. चल मैं तेरे को एक हिंट देता, वैल्यूज देख यहाँ पे। इनिशियल A1 कितना था? 10। फाइनल कितना हो गया? 2। तो तू यहाँ पे क्या करते? 2 minus 10. So yeah, very good. So basically you will get what बेटा? Whenever we write in terms of reactant, reactant का कभी भी रेट क्या आएगा बोलो बेटा? नेगेटिव. Okay, so for reactant it is minus. Hey, what will be for product? Arjun, what will be for product? Final कितना है बोल? And this is what? So it will be positive or negative? Okay, B2 minus B1 what will write? नहीं, अरे delta B ना बेटा, upon delta T, but it is what बेटा? Positive. And here it was what? So if I want to define rate of reaction in terms of reactant, in terms of, so rate of reaction is what beta? Minus means what? Decrease. Change in concentration of reactant per unit time. Delta का मतलब क्या होता है बोलो बेटा? So rate of reaction is what beta? Decrease in terms of reactant. It is decrease in concentration of reactant per unit time. If I want to define in terms of product, then what it will be? Rate of reaction is increase in concentration of product per unit time. So in general, if I want to define, in general, so rate of reaction is what beta? Change in concentration of reactant or change in concentration of product per unit time. Is this clear to all of you? Hello, have you all understood the definition? Rate of reaction is what? Change in concentration of reactant or change in concentration of product per unit time. Any difficulty till here? Very good. If I want to plot the graph of these two, hey, wait. What I have written here, look here. This is in terms of reactant and this is in terms of product. Tell me what you are going to get. Suppose if I have written here concentration of reactant, what I have written here? ये concentration of reactant है और ये क्या है? टाइम. अबे बेबी ये रिएक्टेंट हो गया, बराबर है, और ये क्या हो गया? प्रोडक्ट. क्लियर? हेलो. ओके. इनिशियली नाउ जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो रिएक्टेंट तुम्हारा बढ़ेगा या कम होगा? वेरी गुड. सो इट विल गो ऑन डिक्रीजिंग. क्लियर है? राइट. अच्छा, आप बोलेंगे सर आपने इसको टच क्यों की नहीं किया? तो पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता. अच्छा बेटा, अब जब टाइम जीरो होगा, साथ बेटा, जब टाइम जीरो होगा तो प्रोडक्ट बनेगा क्या? टाइम जीरो होगा तो प्रोडक्ट बनेगा क्या? अरे रिएक्शन स्टार्ट होगा तभी प्रोडक्ट बनेगा ना, जब टाइम. तो यहाँ पे मेरा ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा बोलो बेटा? ओरिजिन से. और बेटा धीरे धीरे देख, अभी प्रोडक्ट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है. ओ माय गॉड, फिर ऐसा कांस्टेंट हो जाएगा. काय को? व्हाई? फिर रुक जाएगा. क्यों रे? अरे बेटा, जब पूरा रिएक्टेंट, जितना भी रिएक्टेंट है उतना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो बाद में प्रोडक्ट बनेगा क्या? नहीं ना, इसलिए वो कांस्टेंट हो गया. समझ में आ गया? क्लियर है? अच्छा, अभी एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आता है बेटा. कैसा क्वेश्चन आएगा? ये देखो, आपको मैंने एक छोटा सा ग्राफ दूंगा ऐसा, ये देखो, और यहाँ पे लिखा रहेगा प्रोडक्ट. क्या लिखा था? और यहाँ पे क्या होगा? टाइम. और आपको मैंने ऐसे अलग अलग ग्राफ दूंगा. एक पिंक वाला है, एक ये ऑरेंज वाला है, फिर एक ये ग्रीन वाला है. क्लियर है? राइट बेटा. तभी मैं आपको बोलूंगा इन तीनों में से, सपोज मैंने नाम दे दिया ABC, विच इज द करेक्ट ग्राफ फॉर प्रोडक्ट वर्सेस टाइम. अच्छा, अगर मैंने बोला रहता विच इज द करेक्ट ग्राफ फॉर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट अगर पूछा रहता तो रिएक्टेंट का तो सी ना. क्लियर है? ये कैसे आएगा? तो अभी ये देखना बेटा, यहाँ पे मैंने दिया है ना. ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू? आप लोग अगर एमसीक्यू में देखोगे ना तो ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ है बेटा. हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट. अबे ये तो ब्लैक एंड व्हाइट ही आएगा ना. ये तेरे लिए क्या कलर बनाएगा क्या? रंगोली? हाँ,
हाँ तो कलर से क्या लेते प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इथिलीन बार, ठीक है ना। चलो बेटा, ओके, एनीवेज, ओके बस, चलो चिल ब्रो, आ जाओ। तो बेटा अभी इफ यू सी माय नोट्स, लिसन ऑल ऑफ यू प्लीज, इफ यू लिसन, this is my reaction I gave you. Look, can you see initial, final? Have you understood all this term? Okay, this will give you a product. Can you see it was initially 0, right beta? Then beta we studied rate in general, then we have written for reactant. Kiku beta please pay attention here. For reactant we have written, reactant में माइनस क्यों आया बोलो, माइनस क्यों आया ये, अरे final concentration is less so it decreases. For product it is what, plus. Then beta, what does this negative sign indicate and positive sign indicate? अरे हाँ ये ले, what does this negative sign indicate बोलो? As time increases concentration of reactant, and here positive sign indicates that as time increases concentration of product. Have you understood this graph? हेलो, अच्छा यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे आप देखो, वहां पे ए है ये, समझा ना, और ये क्या है तेरा बी, प्रोडक्ट है, दिख रहा है वहां पे, जेरोक्स में देखा कैसा है, जेरोक्स मैंने देखा नहीं, दिख रहा है ना बेटा। अच्छा, if I want to define rate of reaction in terms of reactant, so rate of reaction is what, decrease in concentration of reactant per unit time. For product it is what, increase in concentration of product per unit time. Okay, right? Have you all understood this everything? So in general if I want to define, how I'm going to define, how I'm going to sit beta, यहाँ पे देख, rate of reaction represent decrease in concentration of reactant per unit time or increase in concentration of product per unit time. हाँ तो ये बस ये वाला लिखना है, ठीक है ना बेटा, राइट। अच्छा, if I want to define now in exam, one more question they will ask, what is, now pay attention here beta, I'll tell you when to refer. ए रेट क्या होता है बोलो, रेट इज व्हाट बेटा, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन क्या, कॉन्सेंट्रेशन हम लोग किसमें लिखते हैं पता है ना बेटा, मोल पर लीटर, मोल पर, राइट ना, मोलैरिटी। ओके, टाइम क्या होगा बोलो बेटा, सेकंड में लिखा, तो अभी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड। अच्छा, ये लीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डीएम क्यूब भी लिख सकते हैं कि नहीं बोलो, तो मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड। अच्छा, तेरे को पता है ये मोल पर लीटर और मोल पर डीएम क्यूब क्या होता है बोलो, मोलैरिटी, सो मोलैरिटी पर सेकेंड। बट ये किसके लिए होगा, इफ माय रिएक्शन इज इन व्हिच फॉर्म, एक्वियस फॉर्म, व्हिच फॉर्म, एक्वियस। बट अगर गैसियस रिएक्शन होगा तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा क्या, गैसेस के लिए क्या लेना पड़ता है, क्या अप्लाई करते हैं हम लोग, प्रेशर। वेरी गुड, तो गैसियस के लिए व्हाट इट विल बी, सिया बेटा यहाँ पे देख ले, तो गैसियस रहेगा, इफ इट इज अ गैसियस रिएक्शन, so what you are going to take beta, pressure upon time. So pressure is measured in what beta, एटमॉस्फियर और बार, जो भी लेना है हम लोग बेटा, पास्कल, हाँ जो भी, सेकेंड, सो इट विल बी व्हाट, एटमॉस्फियर पर सेकेंड। So now the next part is what beta, unit, and चलो आ जाओ, अरे इधर पे आ जाओ नोट्स पे, ठीक है। What is your rate of reaction? Can you see concentration upon time, concentration time inverse? Concentration we write in terms of what? Mole per liter. Are you getting it or not? Tell me. Per second. A mole per liter, I can write it as mole per dm cube per second. A mole per dm cube is what? Capital M. Capital M क्या है? अगर चाहिए तो लिख लो बाजू में. Molarity. Molarity. This is for solution. Now we are going to go for what? Gaseous reaction. Gaseous reaction. तेरे को notes नहीं दिया बेटा? अरे बोलने का ना भाई, क्या रे यार, अर्जुन ने इसको, सर सर हाँ बोल रहे हैं, वो जो सेकंड लास्ट लाइन और लास्ट लाइन में डिफरेंस क्या है, किसमें सेकंड लास्ट लाइन, मोल पर मोल, अच्छा टेल मी बेटा, ए अच्छा, लीटर इज नथिंग बट डीएम क्यूब, इतना पता है कि नहीं तेरे को, तो लीटर इनवर्स को तू क्या लिखेगा, डीएम क्यूब इनवर्स लिखेगा कि नहीं, तो बस वो लीटर इनवर्स की जगह पे डीएम क्यूब इनवर्स लिखाइए रे,
समझा क्या? तो M के अच्छा हाँ, ये मैं बताता। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता था पता है ना? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, इतना पता है कि नहीं? तो तेरा मोल मोल अपॉन अगर लीटर लिखा रहेगा तो मोल पर लीटर को तू क्या लिखेगा? मोलैरिटी होगा कि नहीं बोल? हैं ये। चलिए प्रेशर का भी, फॉर गैसियस रिएक्शन यूनिट क्या होगा बोलो बेटा? प्रेशर अपॉन टाइम, बराबर है? तो प्रेशर टाइम इनवर्स। प्रेशर एटमॉस्फेयर में हो सकता है, बार में हो सकता है, पास्कल में हो सकता है, क्लियर है? या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी हो सकता है। एमसीक्यू में पूछेगे व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर सोल्यूशन, तो ये फॉर फॉर गैसियस रिएक्शन देन दिस। आर यू गेटिंग इट? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। या बेटा मस्त नींद आ रही है यार तेरे को, आज क्या हो गया बेटा? ट्रैवल करके आए हो क्या बहुत? इसके पहले कोई क्लास था आप लोगों का आज? कौन सा था? विच क्लास यू हैड? ओके, वेरी गुड। नाउ लुक हियर बेटा, we are going to go for the next part. And hey. So we have done rate of reaction, we have done the unit of rate of reaction, right? We have plotted the graph also for rate of reaction. Suppose beta this is your home. You are coming to classes. Okay? होम से क्लासेस है, ठीक है ना? ओके ठीक है, बस बस अभी बस वो सब जान दो। अभी बेटा आप घर से यहाँ पे आए, ठीक है ना बेटा? नाउ यू आर कमिंग फ्रॉम हियर टू हियर, ओके? सब आने वाला है, सब आएगा, ठीक है? अभी बेटा आपने मुझे यहाँ पे आके बोला ए लिसन, आपने यहाँ पे आके मेरे को बोला सर आई केम हियर एट द स्पीड ऑफ लेट अस से 20 किलोमीटर पर आवर। कितना बोला आपने? अच्छा नाउ प्लीज टेल मी, जब आप घर से क्लास आए तो क्या पूरे रास्ते में आपका स्पीड 20 किलोमीटर रहा होगा? इफ देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक योर स्पीड विल बी लेस, इफ इट इज ओपन रोड योर स्पीड विल बी मोर. So what information you should exactly tell me? Was your speed 20 kilometers per hour throughout the path? No, na beta. So sometimes your speed may be what 10 kilometers, sometimes it may be what 30, sometimes it may be 15. So basically what information you are conveying me? Your average speed. What your average? So when you are coming from home to class, so that time will actually the speed which you take, the rate we take, that is which rate? Average rate of reaction. Which reaction? So similarly, if I'm carrying out a reaction for 10 minutes, let us say. Okay. So basically, if I am finding the speed, it will be what beta? Average rate of reaction. It will be what? Average rate. So in acha. Now when you are coming from home to class, can you measure the time or not? Tell me. Time interval is very, very large or not? So what is average rate of reaction? What is your average rate of reaction? What is your average rate of reaction? It is the rate of reaction which is measured over a large time interval. It is measured over a large time interval. It is measured over a large time interval. Okay. Now we go. हाँ, पहले बेटा कॉन्सेप्ट समझो बेटा बात. ओके. तो अच्छा मेरे को अगर एवरेज स्पीड लिखना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे? आर. और एवरेज के लिए क्या लिखते हैं बेटा? एवीजी. व्हाट वी राइट बेटा? ओके बस बेटा भगा दूंगा मैं तेरे को, मेरे को दोनों को, ठीक है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एंड इन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बेटा डेल्टा टी, दैट इज योर टाइम इंटरवल. इट इज व्हाट? लार्ज एंड मेजरेबल. टाइम इंटरवल इज या. So beta, it is nothing but what beta? Rate of reaction, average rate of reaction is nothing but rate of reaction only. It is nothing but which is measured over a time interval is large and measurable. Clear है बेटा? But if I ask you, चलो बेटा, सपोज अभी आप आ रहे हो यहाँ पे, ओके? यहाँ पे हमारा कौन है? मैगडी आया बीच में, क्या आया? यहाँ पे अपना लकी सैंडविच आया, ओके? हाँ जो भी है. अच्छा कहाँ पे? हाँ हाँ हाँ, बाबू वड़ा पाव ले ले, बाबू वड़ा.
हाँ जो भी है, बस बस इतना ही हम लोग, बस। ओके ओके ओके, बस। अब नाउ व्हाट आई एम डूइंग, तो बेटा व्हाट आई एम डूइंग, ओके। अच्छा बेटा, आप लोग कभी मतलब नाउ डेज, पहले तो नहीं था, अभी बहुत यूज है एवरीवेयर ऑन द हाईवे रोड पे, उन्होंने क्या फिक्स करके रखा है? कैमरास, स्पीड गन्स, क्या फिक्स करके रखा है? Speed gun. अच्छा, वो लोग ने ऐसा लिखा रहता 40 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, आपने इफ यू इंक्रीज योर स्पीड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, जहाँ पे 40 पूछा था, लेकिन अगर 40 से ज्यादा आपने किया तो यू गेट ई चालान्स, ओके, आपका फोटो के साथ फाइन आता है, ओके। तो व्हाट दे आर मेजरिंग योर स्पीड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एट अ पर्टिकुलर instant, at a particular, okay. So now suppose if I am standing in front of MACD with a speed gun, and when you are passing from here, ठीक है ना बेटा, you are passing from here, so h, so what is your, I am measuring your speed at a particular point, let us say this point is how much बेटा, x। ये यहाँ पे लेकिन एग्जैक्ट पॉइंट पे आई एम फाइंडिंग, तो यहाँ पे टाइम इंटरवल क्या होगा बोलो। सपोज मैं यहाँ से यहाँ पे चल के आ रहा हूँ, यहाँ से इधर से इधर आ रहा तो आएगा, यहाँ से यहाँ, समझ पकड़ बेटा पर। अभी मेरे को आप ऐसा रखना, if you want to find the speed at this particular point, my speed when I'm going from here to here, तो here what will be the time interval, यहाँ से मैं पास होगा तो टाइम इंटरवल क्या होगा, देखना एकदम छोटा होगा कि नहीं बोलो। at a particular point time interval will be very 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 less। मैथ्स में पढ़ा रहेगा ना, लिमिट टेंड्स टू जीरो, याद आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे टाइम इंटरवल will be almost tending to zero but not zero। Are you getting? So time interval will be very 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 small। So if I'm measuring your speed at a particular point, x पे, y पे, z पे, so here if I'm measuring your speed, then it will be which speed? Instantaneous speed. Which speed? Instantaneous speed। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड में टाइम इंटरवल क्या होगा? वेरी 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 स्मॉल। अच्छा, इंस्टेंटेनियस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे बोलो बेटा? आर इंस्टेंट। व्हाट वी यूज वर्ड? ओके, नाउ टेल मी, इंस्टेंटेनियस स्पीड बेटा आपको क्या वैल्यू देगा, एग्जैक्ट वैल्यू देगा कि नहीं? आपका एक्स पॉइंट पे क्या स्पीड था, वाई पॉइंट पे व्हाट वाज योर स्पीड, जेड पॉइंट पे क्या था स्पीड? क्लियर है? ओके। So what is instantaneous speed, Arjun? If I want to define, so instantaneous speed is nothing but what? What is instantaneous rate of reaction? Instantaneous rate. Instantaneous rate of reaction is the rate of reaction which is measured at a particular instant. It is measured at a particular। अच्छा, अभी एवरेज और इंस्टेंटेनियस में कौन एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देगा बताओ? एवरेज में या इंस्टेंटेनियस में? आपका हर एक पॉइंट पे स्पीड, हु विल कन्वे योर स्पीड एट ईच एंड एवरी पॉइंट? इंस्टेंटेनियस। So instantaneous speed is preferred over average speed. Clear? Now what is the difference between average and instantaneous with respect to time interval? In average rate of reaction, what will happen? Time interval is large and measurable. But in instantaneous, it is what? Infinite, it is really very, 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 very small. तो बेटा अभी इधर पे आ जाओ, तो फॉर्मूला सब सेम ही रहेगा। रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव होगा, प्रोडक्ट के लिए क्या रहेगा? पॉजिटिव। बट ये वर्ड अभी आपको समझ में आया, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज? कम हियर बेटा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बेटा फॉर्मूला देख सेम है कि नहीं बोलो? क्या है? व्हाट इज दिस बेटा? बेटा तुझे सीरियस, हाँ, टाइम इंटरवल इज व्हाट? लार्ज एंड मेजरेबल। इफ आई वांट टू डिफाइन, हाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन? Alishka, how I'm going to define? Tell me. Average rate of reaction is nothing but, it is nothing but, ये फॉर्मूला किसका था? रेट ऑफ रिएक्शन का ही था कि नहीं? Which is measured over a large and measurable time। But if I want to find instantaneous rate of reaction, what is the definition for instantaneous? Come on, tell me. Rate of reaction which is measured at a, बोलो, particular instant। अभी आपको ना एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा बेटा, क्या क्वेश्चन आएगा बोलो? अभी बेटा हम लोग ने ये दो ग्राफ किया था, पता है कि नहीं? ये किसका था बोलो बेटा? एक रिएक्टेंट का था। किसका था बोलो बेटा? रिएक्टेंट का था। और एक किसका था बोलो बेटा? प्रोडक्ट। ओके, अब यहां पर आ जाओ। अगर मैं आपको बोलता
ये पॉइंट और ये पॉइंट, मतलब ये आपका घर है और ये आपका क्या है, क्लासेस। तो अगर इफ आई फाइंड योर स्पीड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, देन इट विल बी विच रेट, एवरेज, विच रेट। But if I tell you to find your speed at this particular point, at this particular, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, बोलो बेटा, ये पॉइंट पे अगर मैंने बोला ढूंढने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस। अच्छा, रिएक्टेंट के लिए अभी आपको ये ढूंढना है, तो हाउ विल यू फाइंड बेटा। मैथ्स पढ़ा है किसने बेटा, हाउ, अच्छा, हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ अ पॉइंट ऑन अ कर्व, एनीबडी, स्लोप ऑफ अ, हाँ, ड्रॉ टेंजेंट, ड्रॉ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अच्छा, किसने डेरिवेटिव्स पढ़ा है क्या, डेरिवेटिव पढ़ा है कि नहीं थोड़ा बहुत। हाँ, तो अगर आप लोग ने वहां पे पढ़ा रहेगा, द स्लोप ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, ऑन अ कर्व, स्लोप ऑफ अ पॉइंट ऑन अ कर्व इज इट्स डेरिवेटिव, इज इट्स डेरिवेटिव। सुना है बोले कभी ऐसा, कोई नहीं सुना है तो भी टेंशन लेने का नहीं कभी। ये देख बेटा, ये ऐसा मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा कि नहीं, यहाँ पर बोलो। सपोज अगर मुझे प्रोडक्ट का ढूंढना होता, किसका, तो प्रोडक्ट का ऐसा, यहाँ पे मैं ऐसा टेंजेंट, ऐसे मैं टेंजेंट बनाता। क्लियर है, ओके, राइट। अच्छा, ए, if you want to find out which speed we are finding, बोलो बेटा, instantaneous, what we are finding, which speed, so our instantaneous is nothing but its slope, it is nothing but slope is nothing but डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, इसका। ए, रिएक्टेंट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस, अच्छा यहाँ पे सब कुछ स्मॉल होता है तो क्या लिखेंगे, माइनस डी ए बाय। अच्छा, प्रोडक्ट के लिए क्या लिखेंगे बोलो बेटा, माइनस क्यों आएगा बे, प्लस आएगा ना, झींगे ऊपर जा रहा है, तो प्लस dB बाय, अच्छा, एंड dt इज व्हाट बेटा, infinitesimally very very small, infinitesimally small time interval। क्लियर, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, फाइंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी बेटा, ओके, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ग्राफिकली, क्या बोलेंगे, ग्राफिकली, ग्राफिकली। क्लियर है, तो आप लोग क्या करोगे, ये जो डायग्राम बनाना, एक ऐसा टेंजेंट ड्रॉ कर लेना, और क्या लिखोगे, आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू इट्स स्लोप। इज दिस क्लियर। कैसे आंसर लिखना है वो मैं बता रहा हूँ अभी, देखो। 115 मैं दूंगा बेटा, प्लीज थोड़ा रुक जाओ बेटा, शराब, बेटा प्लीज, देखो बेटा, आज मैं नहीं नहीं प्लीज बेटा, मैं दूंगा ब्रेक, थोड़ा मुझे ना आज थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो आई लीव थोड़ा अर्ली बेटा, ठीक है ना प्लीज। ब्रेक भी दूंगा, ब्रेक भी दूंगा, ब्रेक भी दूंगा, तो अर्ली मतलब 15 मिनट्स अर्ली, ठीक है ना, आप प्लीज। ये देख बेटा, इफ देन एग्जाम दे विल आस्क यू, तो हाउ टू राइट आंसर, एवरीथिंग आई गिवन, लुक हियर, ये देखने, हियर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, डिटरमाइन, देखिए क्वेश्चन है तुम्हारा, डिटरमाइन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज डिटरमाइंड बाय द ग्राफ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, देन फाइंड इट्स स्लोप, ओके, ऑफ अ पॉइंट एट विच द आर इंस्टेंटेनियस, मतलब ये पॉइंट पे मेरे को डिटरमाइन करने का है, फिर बस में ये आंसर लिखना है बस, कितना इजी है बोलो, राइट। अच्छा, अगर मैं ये पॉइंट से ये पॉइंट पे ढूंढता, तो यहां से यहां पे ढूंढता, तो वो क्या होता बोलो बेटा, एवरेज होता, हमको एवरेज नहीं ढूंढना यहाँ, इज दिस क्लियर, ओके। अच्छा, आर इंस्टेंटेनियस में डेल्टा टी क्या रहता है तुम्हारा बोलो बेटा, इनफाइनाइटेसिमली वेरी वेरी स्मॉल, विच रेट इज प्रिफर्ड ओवर विच, बोलो, इंस्टेंटेनियस इज प्रिफर्ड ओवर एवरेज, इंस्टेंटेनियस इज प्रिफर्ड ओवर एवरेज। चलो बेटा, इंस्टेंटेनियस इज प्रिफर्ड ओवर, how to apply this to chemical equation, how to apply this to chemical equation। रिएक्टेंट के आगे हमेशा क्या लिखने का बोलो, जितना भी रिएक्टेंट होगा उसके आगे व्हाट विल राइट, ऑलवेज साइन माइनस, प्रोडक्ट रहेगा तो क्या लिखने का,
प्लस प्रोडक्ट रहेगा तो क्या लिखने का, प्लस। प्रोडक्ट रहेगा तो क्या लिखने का, प्लस। कितना समझ में आया? अब ये इक्वेशन को कैसे अप्लाई करेंगे, चलो अर्जुन बेटा आपसे स्टार्ट करते हैं। Yes. ये बेटा आपका नाम क्या है? नीवा। नीवा बेटा चल तेरे से पहले स्टार्ट। Now we are going to study one important concept बेटा, this is very very important ना, ये न्यूमेरिकल्स में हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। We are going to apply this to numericals and this is known as differential rate expression। बहुत इजी है बेटा, एकदम इजी है, खाली नाम वो लोग ने ऐसा कॉम्प्लिकेटेड यूज किया है। डिफरेंशियल rate expression, what word they have used beta? I will give you first basic reaction. A plus B gives you C plus B। ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, ठीक है, ओके। अच्छा, अभी बेटा मुझे अगर इसका आर इंस्टेंटेनियस ढूंढना होता, अगर रिएक्टेंट होता तो आर इंस्टेंटेनियस क्या होता, बोल बेटा। आर इंस्टेंटेनियस रिएक्टेंट के लिए क्या आएगा बेटा, माइनस ना, तो माइनस डेल्टा ए बाय, इसके लिए भी क्या आएगा बोलो बेटा, वेरी गुड। आर इंस्टेंटेनियस इसका क्या होता बोलो बेटा, माइनस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। चलो प्रेशा बेटा दीक्षा बेटा, दीक्षा बेटा ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के लिए क्या आएगा आर इंस्टेंटेनियस, बता मुझे। पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, वेरी गुड। तो क्या लिखेगी बोल बेटा, प्लस बाय डेल्टा टी। टी के लिए टी भी प्रोडक्ट है ना अपना, तो क्या आएगा बोलो, अभी बेटा मेरे को इन दोनों को कंबाइन करना है। अगर आपने देखा सबका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम। सबका लेफ्ट हैंड साइड क्या है, देखो बेटा सेम है क्या नहीं, आर इंस्टेंट आर इंस्टेंट आर इंस्टेंट आर इंस्टेंट एंड ऑल आर इक्वल टू ईच अदर। तो मैं कैसे लिखूंगा बोलो बेटा, इफ आई वांट टू फाइनली अप्लाई दिस टू दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, सो हाउ आई एम गोइंग टू राइट। ए था, बी था, क्या था बोलो बेटा, सी था और डी। बहुत इजी है देखो। तो आर इंस्टेंटेनियस, अभी इसके लिए तू क्या लिखेगी बोलो, क्या था बोलो इसके लिए, अरे बोलना, माइनस। तो क्या लिखेंगे बोलो, माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा, विच इज इक्वल टू दिस, बिकॉज देख ना दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है कि नहीं बोलो, तो क्या आएगा, माइनस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। ए ये भी सेम है कि नहीं, आर इंस्टेंटेनियस ही है ना, तो विच इज इक्वल टू व्हाट बोलो, प्लस डेल्टा सी बाय डेल्टा, विच इज इक्वल टू व्हाट अगेन दिस ना, सो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, इजी। अच्छा बेटा कोई भी रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या होता है, कंज्यूम हो जाता है कि नहीं बोलो, और प्रोडक्ट क्या हो रहा है तुम्हारा, फॉर्म हो रहा है कि नहीं, ओके। रिएक्टेंट कम हो जाता है, प्रोडक्ट क्या हो जाता है, फॉर्म। तो ये वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस एंटायर पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस एंटायर पार्ट को रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दूसरा नाम क्या दे देते हैं बोलो बेटा, कंजम्पशन, रेट ऑफ, रिएक्टेंट आर कंज्यूम्ड और नॉट, टेल मी बेटा। और यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ फॉर्मेशन। समझ में आ रहा है बेटा, कॉमन सेंस है अर्जुन बेटा। ये अर्जुन इधर देख, जिस स्पीड से द स्पीड विद विच द रिएक्टेंट कम होगा उतनी ही स्पीड से प्रोडक्ट फॉर्म होगा। सो रेट ऑफ अपीयरेंस, सॉरी रेट ऑफ डिसअपियरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ कंजम्पशन इज इक्वल टू रेट ऑफ, but this was written for 1 mole, this was written for how many moles, मोल। सपोज बेटा मैंने अगर ए मोल्स ले लिया, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे ध्यान दो, इफ आई टेकन दिस हाउ मच बेटा, बैलेंसिंग के लिए कोई नंबर में डालूंगा कि नहीं, तो यहाँ पे बी आया, यहाँ पे क्या आया, सी आया, यहाँ पे क्या आया। तो हमको क्या करना है, जो भी नंबर बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर है उससे उसको डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बोलो, श्रिया बेटा देख यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर ए है तो 1/a, वेरी गुड। यहाँ पे क्या है, वेरी गुड। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, समझ में आया। सो रेट ऑफ अपीयरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ, बोलो रेट ऑफ डिसअपियरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस, और रेट ऑफ कंजम्पशन इज इक्वल टू रेट ऑफ
अब हमको ये इक्वेशन में अप्लाई करना है। कहाँ पे अप्लाई करना है? नॉर्मल केमिकल रिएक्शन में। तो अभी आपको इतना तो ट्रिक आ गया, अगर रिएक्टेंट होगा तो उसके आगे क्या साइन डालने का? माइनस। बैलेंसिंग के लिए कोई नंबर होगा तो उससे उसको क्या करने का? डिवाइड। प्रोडक्ट रहेगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, अंडरस्टूड होता है वो पॉजिटिव है। ठीक है, और सबके बीच में कौन सा साइन आना चाहिए? इक्वल टू। देखा सबके बीच में कौन सा साइन आ रहा है? क्योंकि आपका आदत क्या होता है, रिएक्टेंट में अगर दो रिएक्टेंट है तो आप प्लस लिख दोगे दोनों के बीच। राइट ना बेटा? क्या साइन आना चाहिए बोलो? इक्वल। अब हम लोग इसको अप्लाई करें, इसको कहते हैं बेटा डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं इसको? डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन। अभी इधर पे आ जाओ बेटा, मेरे नोट्स में आ जाओ। डेंटन एंड व्हाट इज द हेडिंग? ओके, नीवा बेटा व्हाट इज द हेडिंग? हाँ देखिए, रिएक्टेंट है प्रोडक्ट। अभी आपको ये समझा, यहाँ पे माइनस साइन क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, नीचे वो ए और बी क्यू आया बोलो। और इतना अच्छे से मैंने दिया है, टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे कुछ समझेगा नहीं। सी, यहाँ पे डी, और सबके बीच में कौन सा साइन आ रहा है गौर से देखो, इसको मिस आउट मत करना। क्योंकि आपका आदत क्या होता है बेटा, यहाँ पे देख सी या बेटा ये प्लस है तो तू यहाँ पे प्लस लिख देगी, प्लस लिखना नहीं है। क्लियर है? नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस, लुक हियर, विल स्टार्ट। चलो विल स्टार्ट। बेटा आपका मैं नाम बोल, भगत सर ने, मैं ना आपका रूहानी। अच्छा रूहानी बेटा, आई एम गिविंग यू वन सिंपल इक्वेशन। चलो आ जाओ। फर्स्ट इक्वेशन, या आई विल टेल यू अप्लाई दिस, राइट डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन फॉर दिस। तो पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन पे दिमाग में सॉर्टेड हो गए कि नहीं बोलो? चलो तो आप ये क्या लिखना है? आर इंस्टेंटेनियस। ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के लिए तो क्या लिखेगी आगे, विच साइन? माइनस। माइनस डी या एच, डेल्टा, जो लिखना है लिख सकते हैं बेटा। डेल्टा भी लिखेंगे तो भी चलेगा और डी भी लिखेंगे तो भी चलेगा। डेल्टा लिखना है तो डेल्टा, या H2 अपॉन, इसके आगे कोई नंबर है बेटा? नहीं ना। अच्छा, फिर ये भी प्लस है तो प्लस लिखने का नहीं, क्या लिखने का? इसके लिए भी क्या आएगा बोलो बेटा? रिएक्टेंट है तो। अब समझ में आ रहा है? अब ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में क्या आता है बेटा? प्लस लिखते हैं। अच्छा, हम लोग पहले क्या लिखते थे? डेल्टा HCl बाय डेल्टा। आगे कोई नंबर है बेटा तो क्या आएगा? अब समझा इक्वेशन को कैसे अप्लाई करने का? हाउ टू अप्लाई दिस टू इक्वेशन, हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? ओके, चलो अब बेटा आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे सुन। दिस इज योर रेट ऑफ फॉर्मेशन, दिस इज व्हाट डिसअपियरेंस, दिस इज व्हाट। ये तीन में से ना बेटा मैं किसी एक का वैल्यू दूंगा। आई गिव यू वैल्यू ऑफ एनी। सपोज मैंने अगर आपको इसका वैल्यू दे दिया Cl2 का, तो अभी आपने अगर आपको कुछ Cl2 का वैल्यू दे दिया है तो व्हाट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl है, तो आप पूरा इक्वेशन को भूल जाओ, इन दोनों को ही सेलेक्ट करने। तो व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ HCl? मैंने इसका वैल्यू तेरे को 10 दे दिया है, ले खुश हो जा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो HCl का? तो ये 2 यहाँ पे चला जाएगा कि नहीं? तो इट विल बी व्हाट, 2 into 10। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl इज 2 times द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ व्हाट? क्लोरीन। समझा? अच्छा सपोज बेटा मैंने अगर आपको इसका वैल्यू दे दिया होता, इसका वैल्यू दे दिया रहता, लेट अस से इसका वैल्यू 10 दिया, ये वाले पार्ट का, तो व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ क्लोरीन बोलो बेटा? हाफ इंटू 10, तो इट इज हाफ टाइम, बरोबर है कि नहीं? क्लियर है? अगर मैंने आपको इंस्टेंटेनियस रेट बोला ढूंढने के लिए तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट ये वाला, ये दो टर्म को लोगे। So any whichever term they have asked and whichever is given, we'll always compare those two. Which we will always compare. अच्छा, जब भी सब सॉल्व करोगे ना तो रेट का आंसर कभी भी नेगेटिव आना चाहिए नहीं। क्या स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? तो व्हाट डज द नेगेटिव साइन इंडिकेट? जैसे टाइम बढ़ रहा है तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। So whenever you will do any sum in this, only in the beginning you write that minus sign. बाद में माइनस को निग्लेक्ट करने का आंसर में। तो क्या है, कभी भी आपका रेट नेगेटिव आ सकता नहीं है। समझा क्या? रेट विल नेवर कम नेगेटिव। चलो विल अप्लाई दिस, इसमें अप्लाई करो। सीड बेटा अप्लाई कर, चल यहाँ पे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू अमोनिया। ठीक है, बैलेंसिंग के लिए क्या आएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर क्या आएगा? चल अभी वहां पे मत देख, इधर देख, ये आर इंस्टेंट रिएक्टेंट के लिए क्या आएगा बोल? इस एन के लिए क्या लिखेगा बोल? माइनस ना। तो माइनस, आगे कोई नंबर नहीं है तो डेल्टा N2 बाय डेल्टा टी। फिर आप इक्वल टू, फिर इसमें भी रिएक्टेंट है ना तो वापिस क्या आएगा?
माइनस H2 बाय, बराबर है। अच्छा आगे, हाँ हाँ वेरी गुड, आगे नंबर था तो 1/3, वेरी गुड अर्जुन, इज इक्वल टू, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव नहीं लिखा तो भी चलेगा, क्या आएगा बोलो, डेल्टा NH3 बाय, और यहाँ पे क्या आएगा, वेरी गुड। नाउ व्हाट दे विल आस्क बेटा इन एग्जाम, लिसन केयरफुली, और यहाँ तक हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी। मैंने अगर ऐसा पूछा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन, रेट ऑफ इज हाउ मेनी टाइम्स द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, तो कितना टाइम्स है बोलो बेटा, हाफ टाइम्स, ये हाफ टाइम्स। अगर मैंने ऐसा पूछा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज हाउ मेनी टाइम्स द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन, तो 2 वहां पे चला जाएगा, तो इट विल बिकम हाउ मच, 2 टाइम्स। आर यू गेटिंग युक्ति बेटा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज हाउ मेनी टाइम्स द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3 टाइम्स, क्या हो जाएगा, आर यू गेटिंग इट, हाँ ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3, पहले में ये 2 इधर पे आ जाएगा। मैं अभी तेरे को सम बताता बेटा, ठीक है, ये सम करने के बाद मैं आपको ब्रेक देने वाला हूँ, बस समझा यहाँ। हाँ तो चलो बेटा, अभी देखो मैंने यहाँ पर सब आपको अप्लाई कैसे करने का वो सब दे दिया है, यहाँ पर देखो, देख रहा है क्या, अरे ये वाला इक्वेशन देखो ना, H2Cl2 देख रहे हो, आगे क्या आ रहा है बोलो, माइनस, इक्वल टू माइनस, ये देखिए 1/2 हो गया, बराबर है। ये वाले इक्वेशन में भी देख बेटा, माइनस, इसको क्या, -1/3, यहाँ पे क्या है, 1/2, क्लियर, ओके, अंडरस्टूड बेटा। अभी एक इसका न्यूमेरिकल करेंगे, आ जाओ टेक्स्ट बुक में आ जाओ सब लोग, इसका न्यूमेरिकल करके मैं आपको ब्रेक दे रहा हूं। अच्छा बेटा, इन टेक्स्ट बुक आई वांट ऑल ऑफ यू टू कम टू पेज नंबर 120, 120 नहीं है तो देख लो बेटा, आजू बाजू में शेयर कर लो, ठीक है, टेक्स्ट बुक लाए हो कि नहीं बेटा, किस स्कूल में हो बेटा, हाँ GMS, I know just to tell you, in near that there is a BEd college, Hansraj Jivandas. I did my BEd from there. And I used to come to take that teaching session in GMS. तो 9th 10th में बायो कौन पढ़ा था, मंदार सर, मंदार ट्यूशन को नहीं कहाँ पे गया था। ओके चलो बेटा आ जाते हैं, एनी डिफिकल्टी यार, अभी देख बेटा, आज हम लोग ने क्या स्टार्ट किया बोलो बेटा, व्हाट वी स्टार्टेड, केमिकल काइनेटिक्स, कैन यू सी दिस, हेलो, राइट, रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज वी डिड, ये लोग ने डायरेक्टली ऐसा लिखा, मैंने पूरा आपको डिटेल में बताया ये सब, माइनस प्लस कैसे क्या होता है, डायरेक्ट पढ़ोगे नहीं आएगा। देन वी डिड दिस इंस्टेंटेनियस का ग्राफ, वी डिड दिस इंस्टेंटेनियस का, ए भाई रो बेटा प्लीज, 12th है बेटा, मैं तुमको एक चीज में बता देता, सुनो, आपको 11th में मार्क्स मिल गए बिकॉज है ना वो वर्कशीट वगैरह होती थी, 12th में ऐसा कोई वर्कशीट नहीं होता है बेटा, मैं तुमको क्लियर कट बता देता, जो किसी भाई का वर्कशीट का मैं जो बैठ के हाँ वर्कशीट वो आंसर उसी में से आया था पूरा, बट ओके, बट अभी 12th में बेटा बोर्ड का होता है बेटा, मैं अभी भी बताता हूँ, अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग से ऐसा एकदम लाइटली लिया ना तो मार्क्स अच्छे नहीं आते, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो जो जो हम यहाँ पे कर रहे हैं बेटा वो उसी दिन कर, 10th का मेरा बच्चा ऑल इंडिया रैंक 1 है शायद, 99.8, मतलब मेरे स्टूडेंट्स है, तो बहुत लोगों को 100 आया, 99.8 आया उसका, ओके, अभी पता चलेगा, अभी 11 बजे रिजल्ट आया है, समझ में आएगा नहीं, वो अभी रात तक पता चलेगा, ठीक है ना, रैंक 2 तो है कंफर्म, बिकॉज 100 होता है तो 90 फर्स्ट रैंक होता है, 99.8 है तो रैंक 2 होगा, एनीवे लास्ट ईयर आया था बैंगलोर में, कहाँ पे आया था, मैं बोल रहा हूँ बेटा, मैं नहीं बोलूंगा, गूगल करके देख लेना बेटा, चल बस 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 बस, एनीवेज इनफ, नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस टू न्यूमेरिकल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो बेटा मैं अभी भी, हाँ हाँ हम लोग ने पाले हुए सब, हाँ ठीक है बेटा आ जाओ, ए रेट एवरेज इंस्टेंटेनियस, यस, चलो बेटा आ जाओ, फिर देखो ये इंस्टेंटेनियस में देख स्मॉल इंटरवल था dt, क्या था, स्मॉल इंटरवल dt, ठीक है, अभी हाउ टू अप्लाई दिस, चलो
ये अभी मैंने बताया कि नहीं, इसके आगे क्या आएगा बोलो बेटा, माइनस डी ए बाय डी टी, इसके आगे क्या आएगा, माइनस 1/3 डीबी बाई डी टी, इसके आगे क्या आएगा बोलो बेटा, प्लस डीसी बाय 1/2 डीसी बाई डी टी। ये देखो बेटा, आगे आगे नहीं बोलो यहाँ पर। अच्छा अभी इसका आंसर लिखो चलो ओरली। ये भाई ये एक्सप्रेशन बोला है, आता है ऐसा एमसीक्यू में। चलो यहाँ पे लिखो आर इंस्टेंटेनियस, खुद से करो, मैं नहीं बताऊंगा। पेज नंबर 121 में लिखो बेटा, आर इंस्टेंटेनियस क्या होगा, अभी लिख दे ये। अरे सर ओरली का बुक नहीं, ओरली नहीं तो बुक को लाना है, टेक्स्ट बुक आपको पता है ना बेटा, हम लोग यहाँ पे प्योर बोर्ड फॉर्म में पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं बाकी क्लासेस है जेई बेई पढ़ा के ये सब पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है ना, हम लोग पूरा। हाँ ओरली तो तुम भी लिखना। बेटा आ लखवानु चाहिए आज आंसर लखने ईडी, तो माइनस क्या आया, हाँ डी लिखा तो भी चलेगा, डेल्टा भी लिखेगा तो चलेगा। हाँ डी टी डेल्टा डी एन टू, मेरे में है। वो अलग हाँ, मेरा पुराना टेक्स्ट बुक है बेटा, हाँ मेरा पुराना टेक्स्ट बुक है, हाँ वो फाइ है वो बेटा, आई एम सो सॉरी, क्योंकि बैलेंस नहीं हो रहा है ना। अरे उसको जान देना, लेकिन ये इक्वेशन तेरा राइट आ रहा है कि नहीं, प्रोडक्ट में क्या आएगा, हाँ डी लिखेगा तो भी चलेगा, ऐसा ट्रायंगल लिखा तो इज प्लस नहीं, इज इक्वल टू, कितना इजी था बोलो, इजी है कि नहीं बोलो। अरे दिस इज माय ओल्ड टेक्स्ट बुक बेटा, 2 × 5 10 ना, देखना 4 × 2 8 + 2 10, बरोबर है, ओके राइट। ब्रेक नहीं, इसी का दो तीन न्यूमेरिकल बाकी, इसी का न्यूमेरिकल है बेटा, देख वो तो गया। अबे झिंगे, ये इसी से रिलेटेड बता रहा हूँ ना, ये डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन आज बताया था। चुपचाप बैठो, अभी ये देख ये वाला न्यूमेरिकल में बता रहा हूँ, देख लो इधर, देख यहाँ पे बराबर इक्वेशन दिया है। अब ये लोग आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको कुछ समझेगा यहाँ पे क्या दिया है। श्रिया तू ही पढ़, चल नहीं प्रेशा पढ़ वे, क्या दिया है बोल, N2O5 का दिया है ना बेटा, तो पहले हम लोग ये ईमानदारी से इक्वेशन लिखने का। अच्छा यहाँ पे लिख देता मैं, आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू व्हाट बेटा, माइनस हाफ, डी फॉर्म में लिखने का तो ले डी फॉर्म में लिखा, बस खुश, इज इक्वल टू हाँ 1/4, हाफ क्यों आएगा बे, हाँ इन, अब तुझे यहाँ पे एग्जाम में क्या दिया है, N2O5 disappears at rate of how much, तो तुझे किसका वैल्यू दे दिया है वो लोग ने बेटा, किसका वैल्यू दे दिया है बोलो, dN2O5/dt का वैल्यू दे दिया है, कितना दिया है बोल, 0.02, हाँ वो जो हाँ वो यूनिट दिया है बेटा, ठीक है ना, मोल पर DM³/सेकेंड, ठीक है ना बेटा। ले अब तेरे को, अभी तेरे को क्या क्या बोला है ढूंढने के लिए, रेट ऑफ NO2 एंड O2 का फॉर्मेशन, पहला हम लोग क्या लेते हैं, चलो NO2 ले गए, अच्छा फिर रेट भी ढूंढने का है, प्रेशा पहले क्या लेगी, ये दो लेगी, ये दो को कंपैरिजन में लेना पड़ेगा। अभी इसमें से हमको किसका वैल्यू पता है, इसका पता है कि नहीं बोलो, तो मैं क्या लिखूंगा, अच्छा अभी मैंने अभी बेटा माइनस लेने का नहीं, अब माइनस लेने का, तो हम लोग क्या करेंगे बोलो बेटा, ये हाफ है, इसका वैल्यू कितना था बोलो बेटा, 0, तो 0 पॉइंट क्या था, 2 बार लिख दिया मैंने, और ये 4 कहां पे चला जाएगा, इधर पे चला जाएगा कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बता रहा है, ये 4 यहाँ पे चला जाएगा कि नहीं बोलो, हाँ तो आंसर आ गया ओरली, ये ले, तो क्या हो जाएगा 0.04 हो गया इसका आंसर। फिर O2 का बोला है, O2 के लिए क्या करते हैं बोलो, वापिस किसको लेते हैं हम लोग बोलो, इन दोनों को, तो अभी DO2 तेरा क्या आ जाता बोलो बेटा, इसके आगे क्या है, हाफ लिखा हुआ है, तो हाफ हाफ इंटू 0.02, ले हो गया ओरली, हो गया। अच्छा अभी ये रेट बोला है, रेट के लिए अभी कौन सा वैल्यू ले लेगा, ये ढूंढने का है, थर्ड पार्ट, ये ले हो गया, माइनस लेने का, फिर वापिस उसका भी आंसर कितना आएगा बोलो, रेट भी 0.01, 01, हाँ लास्ट में क्या बोला है ढूंढने के लिए तुझे, तो रेट के लिए अभी तू किसका, इसका किसका वैल्यू तुझे दिया है, इसका दिया है कि नहीं, तो रेट तेरा अभी ये दो ये सिलेक्ट करेगा तो रेट आ गया कि नहीं बोल, कोई भी ले आंसर सेम ही आएगा,
अरे you want to select the rate ना, तो either you take this Yes. or you take this or you take this, आंसर सेम ही आएगा. So rate of reaction is minus 1/. हाँ, अरे इसमें से कोई भी एक ले ले. इन लोगों ने इसका वैल्यू दे दिया तो मैंने डाल दिया. चल अगर तू वो वाला लेता, इसका वाला लेता तो क्या था 1/4 into 0.04, तो वापिस 0.01 ही आ रहा था कि नहीं. Yes. अब समझा क्या वो सबके बीच में इक्वल टू साइन क्यों आता है? Break. दे रहा हूं, बोला ना. now आपने आप इसका ओरली आंसर लिखो. किसका? इसका पे वहां पे लिख दे नीचे. चल आर का वैल्यू पहला लिख लेना. अरे यही इक्वेशन में अप्लाई करो आर. अरे रिएक्शन में माइनस डाल दे वहां पर एक गिरी. So orally मैं अबे ये क्या है? minus 1/3. वेरी गुड. हाँ ऐसा -1/3 डी आई माइनस डी टी. फिर इसका क्या होगा? ये भी माइनस ही रहेगा. 2 माइनस अपॉन डी टी. अगर वो 2 minus में लिखा तो क्या होगा? लिखने का जो दिया है वही लिखना. वो तेरे को तो खाली डी करना है आगे. 10 आप प्लस नहीं लिखा तो भी चलता है. हो गया. अभी वो लोग ने किसका वैल्यू दिया है? इसका वैल्यू दे दिया है. SO4 इसका कितना दिया है? 0.02. 0.022. तो अगर चल बेटा मैंने तेरे को रेट बोला रहता तो क्या होता? रेट का वैल्यू क्या हो जाता? बोलो. हाफ इंटू 0.022. तो 0 आगे आगे नहीं. फिर इन तीनों में से जो भी पूछा रहेगा वो डाल दो. हो गया. कितना इजी था बोलो. इजी है कि नहीं बोलो बेटा. सम इजी लग रहे हैं. तो अभी एक वेट मैं दे रहा हूँ ब्रेक. बोला ना मैं दे रहा हूँ ब्रेक. अरे इसका क्या करेगी? आई माइनस का. अरे बोला नहीं. तो आई माइनस में ये 3 इधर पे मल्टीप्लाई हो जाएगा. 3/2 हो जाएगा. तो 3/2 कितना हो जाएगा? तो 0.033 आएगा आंसर. आर यू गेटिंग इट? कॉन्सेप्ट गया कि नहीं दिमाग में? Yes. what is it? okay. नहीं टेक्स्ट बुक में मैं सब नहीं कर रहा. आपको ये होमवर्क 136 पे ये वाला सम आप कर सकते हो. बस यही सम. चलो देन बाबा. अरे बाबा ही नहीं, सॉरी. ब्रेक दे रहा हूं. ब्रेक. ओके. Now we are going to start with the very important concept of this chapter. This is very important. Every year board में आता भी है. Okay, we are going to study about molecularity and order of reaction. In textbook beta they have given order first and then molecularity. You will not understand. Hey, hello, you will not understand. So I am going to give you 3 examples we are going to keep in mind and you will understand this entire thing perfectly. Now, first of all, we have to study law of mass action. Law of mass action we have studied in your Loma means what? Law of mass action. नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं. अच्छा, ये कोई भी रिएक्शन का स्पीड किस पे डिपेंड करेगा? मैं स्टार्टिंग में क्या लेता हूँ रिएक्शन करने के लिए? स्टार्टिंग में मैं क्या लेता बोलो? रिएक्टेंट. तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? concentration of reactants. concentration of law of mass action. यहाँ पे ये चैप्टर में पूछेंगे नहीं लेकिन आपको आना चाहिए. ओके. अच्छा, अगर मैंने ऐसा रिएक्शन लिया बेटा A + B gives you प्रोडक्ट. एरो का मतलब क्या है? gives you प्रोडक्ट. A और B प्रोडक्ट नहीं है. A और B क्या है तुम्हारा? बोलो. रिएक्टेंट है. क्या है बोलो बेटा? तो रेट ऑफ रिएक्शन बेटा ये आ गया बेटा. क्लियर? एनी डिफिकल्टी? क्लियर? ओके. अभी R हम लोग ने यहाँ पे ले लिया. रिएक्टेंट में कौन कौन दिख रहा है तुमको? बोलो. A और B ना. कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट. गिरा मत बे. सो रहा है क्या बे? इन दोनों के बीच में कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन मैंने डाला? बोलो बेटा. प्रोडक्ट. मल्टीप्लीकेशन. डॉट. अगर ये बेटा A मोल्स होता और ये B मोल्स होता तो मैं क्या लिखता? A⁴A B⁴B. सो व्हाट इज law of mass action? Rate of chemical reaction is directly proportional to the product of the concentration of reactant raised to their stoichiometric coefficient. Stoichiometry वर्ड ऐसा टफ लगता है ना. stoichiometric coefficient मतलब जो बैलेंस करने के आगे नंबर लिखते वो. क्लियर है? So what is law of mass action? बोलो बेटा. Rate of reaction is directly proportional to the concentration of the reactant.
बोलो ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू देयर स्टोइकियोमेट्रिक। क्लियर है? अच्छा, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को मैं निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बोलो? इज इक्वल टू के डालते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं बोलो बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो इसको हम लोग कहते हैं रेट कांस्टेंट। क्या कहते हैं? रेट कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है रेट कांस्टेंट। इसका दूसरा नाम होता है वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट। तीन तीन नाम है इसका। कितना नाम है? तीन तीन। तो इधर पे आ जा बेटा। ओए, ये मेरा नोट्स में देखो अभी, हमारा नोट्स में देखने का ब्रो। प्लीज बेटा, ए प्लस बी एरो प्रोडक्ट, मतलब ये तेरा रिएक्टेंट है, चाहिए तो इसके नीचे लिख ले रिएक्टेंट, वरना बच्चे क्या समझते हैं ए और बी प्रोडक्ट है। इट इज गिविंग प्रोडक्ट। Rate of reaction is what बेटा? Directly proportional to concentration of reactant. Can you see? Raised to their stoichiometry के बैलेंस करने के लिए जो नंबर डाला उसका पावर था क्या? ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को निकालेंगे तो इक्वल टू क्या डालेंगे? कांस्टेंट। के को क्या कहते हैं बोलो बेटा? रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? अब बेटा ये अभी है ना बेटा, मैं तुमको ना एक इंपॉर्टेंट चीज बताता। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? रेट लॉ। क्या पढ़ने वाले हैं? रेट लॉ। रेट लॉ में बेटा अभी पहला मैंने देखिए ये रिएक्शन लिखा है, ये रिएक्टेंट है प्लीज, ये प्रोडक्ट नहीं है। ये क्या है बोलो? रिएक्टेंट गिव्स यू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट गिव्स यू। अच्छा, अब लोमा क्या बोलता है? लोमा, अकॉर्डिंग टू लोमा rate of reaction is directly proportional to the product of the concentration of the reactant raised to their stoichiometric coefficient। तो रिएक्टेंट कौन था बोल बेटा? a raised to a, b raised to b। लेकिन अभी आप बोलोगे सर ये a और b था, सडनली यहां पर x और y कहां से आया? सडनली यहां पर x और y कहां से आया? अच्छा बेटा, अभी सपोज बेटा ये रिएक्शन है a प्लस बी, यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट बन रहा है, सुनो ना। ए, सपोज बेटा मैंने इनिशियली ये कितना लिया था, ऐसे मैं आपको बताता, ये मैंने मैंने 1 मोल लिया था, ये भी 1 मोल लिया था। कितना लिया था इनिशियली? रिएक्शन होने से पहले मैंने कितना लिया था? लेकिन बेटा क्या ये जरूरी है कि पूरा रिएक्टेंट रिएक्ट होगा? पूरा रिएक्टेंट रिएक्ट होगा? लेकिन आपको अगर मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो आपको देख के आपको तो क्या लगेगा कि रिएक्टेंट रिएक्ट हो रहा है, लेकिन कितना रिएक्ट हुआ वो तुमको ऐसा बोर्ड पे देख के पता चलेगा क्या? उसके लिए तुझे क्या करना पड़ेगा? लैब में एक्सपेरिमेंट। लैब में एक्सपेरिमेंट। अर्जुन बेटा, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एंटायर 1 मोल इज गोइंग टू रिएक्ट। आउट ऑफ दिस 1 मोल लेट अस से 1 मोल्स इज रिएक्टिंग, 0.8 इज रिएक्टिंग। हियर आल्सो लेट अस से यहाँ पे कितना रिएक्ट हो रहा है? 0.9 इज रिएक्टिंग। ठीक है? इनिशियली आई थॉट दिस इज माई ए एंड दिस इज माई बी, बट एक्चुअली हाउ मच इट इज, ये कहां से मिला मुझे? फ्रॉम वेयर आई गॉट? So from experiment, so this is my x and this is my, so what I can say now from this, out of a moles of A, how many is reacting? Only x moles. Out of B moles of B, how much is reacting? 5. But how we came to know about this? By doing experiment. By doing so look बेटा, ये अभी समझा ये एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्यों लिखा है? तो अभी देख बेटा, ये एक्स और ये लिखा है कि नहीं? आउट ऑफ ए मोल्स ऑफ ए हाउ मेनी रिएक्ट? एक्स। आउट ऑफ बी मोल्स ऑफ बी हाउ मेनी इज गोइंग टू रिएक्ट? समझ में आया क्या? दिमाग में गया क्या? हेलो, बोलो बोलो बोलो। क्लियर है? अच्छा, अभी रेट लॉ का डेफिनेशन लेकिन हमने किया क्या युक्ति बेटा? तो रेट लॉ का डेफिनेशन सेम होगा, खाली एक ही नया वर्ड आएगा। क्या कीवर्ड आएगा बोलो बेटा? ये एक्सपेरिमेंटली कहां से वर्ड आएगा बोलो बेटा? तो रेट लॉ क्या है बोलो बेटा? इट इज डिटरमाइन हाउ expresses the rate of chemical reaction in terms of concentration of what? Reactant, and not predicted by stoichiometry। stoichiometry में क्या था? ए और बी था। अच्छा, लेकिन कोई कोई रिएक्शन में क्या हो सकता है? मन्नत बेटा ना, बेटा मन्नत तो जन्नत, मन्नत मन्नत बेटा, इन सम रिएक्शन कभी कोई ऐसा भी रिएक्शन हो सकता है, हम दोनों रिएक्टर हम लोग पूरा भी रिएक्ट करते हैं, तो योर वैल्यू ऑफ एक्स कैन बी इक्वल टू ए, वैल्यू ऑफ वाई कैन बी इक्वल टू वाई। समझ में आ रहा है? क्लियर है? दिमाग में गया क्या? मैंने बोर्ड पे ऐसा ही लिखा, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, तो देखो क्या लगेगा? नाइट्रोजन हाइड्रोजन पूरा रिएक्ट हो रहा है,
नहीं, लेकिन जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो मुझे पता चला नाइट्रोजन में से सिर्फ 0.8 ही रिएक्ट हो रहा था, हाइड्रोजन में से 0.9 ही रिएक्ट हो रहा था। क्लियर है? तो रेट लॉ इज गॉट एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन क्वांटिटी। क्लियर? अब बेटा मैं तुमको ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, मॉलिक्यूलरिटी है और चलो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ये बुक से पढ़ के नहीं समझेगा। आ जाइए, हम लोग दो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? मॉलिक्यूलरिटी, एंड देन व्हाट आई एम गोइंग टू स्टडी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके लिए आपको एग्जाम का, स्कूल का एग्जाम्पल है। स्कूल में आपको क्या मिलता था बेटा? प्रोजेक्ट मिलते थे कि नहीं, बोलो। हाँ बेटा, स्कूल में क्या मिला है मुझे? एक प्रोजेक्ट मिला है। क्या मिला है? प्रोजेक्ट, ग्रुप प्रोजेक्ट है। क्या है? हम दो जन हैं। कितने जन हैं? दो जन हैं। ओके, स्कूल में एक प्रोजेक्ट मिला है, प्रोजेक्ट हमको कंप्लीट करना है। ठीक है, सपोज अभी दो जन थे बेटा। ओके, दो जन है, हम दो जन थे बेटा। ये था बेटा, दो जन थे। चलो हम लोग नाम ले लेते। पहला हम लोग को प्रोजेक्ट मिला है, मैं और कौन है बोलो? किक्कू, कौशल। कौशल और मुझे प्रोजेक्ट मिला, हमको देना है। तो स्कूल में प्रोजेक्ट तो सबमिट करना पड़ेगा। अभी कौशल ने क्या बोला? अरे सर मेरे को बाइक चलाने जाने का है, मेरे पास टाइम नहीं है, सर आप प्लीज मेरा प्रोजेक्ट बना दो ना। मतलब स्कूल में ऐसा ही होता है ना, ग्रुप प्रोजेक्ट में आपको ग्रुप प्रोजेक्ट मिलता है तो व्हेनेवर यू गेट ग्रुप प्रोजेक्ट, एक जन ऐसा नमूना होता है ना बेटा। तो ओके, वेरी गुड। तो अभी व्हाट वी डिड बेटा, नाउ लिसन केयरफुली, ये कॉन्सेप्ट समझो अच्छे से। हम लोग ने, कितने लोग ने पार्टिसिपेट किया था? तो अच्छा, अभी ये प्रोजेक्ट में लेकिन इसने काम किया क्या? अच्छा, जितना लोग पार्टिसिपेट करते हैं, जितना लोग पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी कितना है बोलो बेटा? कितने लोग ने पार्टिसिपेट किया? लेकिन बेटा ये प्रोजेक्ट को मैं ना, काम मैंने ही किया। काम किसने किया सिर्फ? तो प्रोजेक्ट का स्पीड किस पे डिपेंड करेगा? मेरे पे डिपेंड करेगा कि नहीं? तो जिस पे स्पीड डिपेंड करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डर। क्या कहते हैं? तो ऑर्डर कितना हो गया? वन। लेकिन अभी ना यही प्रोजेक्ट को बेटा है ना, स्कूल में है ना फर्स्ट प्राइज मिला। क्या मिला? तो है ना, अनाउंसर ने हम दोनों का नाम लिया, तो हम दोनों आए स्टेज पे। ठीक है ना, कौशल एकदम आगे आ रहा था एकदम। तो आप ये एज एन ऑडियंस, आप सब लोग ऑडियंस हो, एज एन ऑडियंस आप लोगों को क्या लगेगा कि दोनों ने काम किया है? एज एन ऑडियंस आप लोगों को क्या लगेगा? दोनों काम किया है। ओ माय गॉड। लेकिन हमको पता है किसने काम किया है। लेकिन अगर आप लोगों को पता करना है किसने काम किया है या नहीं, तो आप लोग एक एक्सपेरिमेंट करोगे। क्या एक्सपेरिमेंट करोगे? प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछोगे। प्रोजेक्ट से रिलेटेड, आप मुझे बोले कि मैं फटाफट आंसर कर दूंगा, कौशल को तो मतलब आपको, लेकिन तब जाके आपको पता चला कि नहीं? इनिशियली आपको पता चला था क्या? तो आपको अगर पता करना है कभी भी, इनिशियली आपको खाली क्या पता चला? कितने बंदों ने पार्टिसिपेट किया? हाउ मेनी पीपल पार्टिसिपेटेड? हाउ मेनी ऑफ देम पार्टिसिपेटेड? कम ऑन टेल मी। तो मॉलिक्यूलरिटी, तो मॉलिक्यूलरिटी आपको देख के समझ में आया कि नहीं? तो मॉलिक्यूलरिटी इज विच कॉन्सेप्ट? थ्योरेटिकल। मॉलिक्यूलरिटी इज विच कॉन्सेप्ट बोलो? थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। रुक जा, कुछ लिखो मत, मैं सब बताऊंगा। पहले लिसन लिसन लिसन, थ्योरेटिकल। लेकिन आपको कब पता चला कि किसने काम किया है? हाँ, क्वेश्चनिंग, मतलब आपने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। तो कोई भी रिएक्शन का अगर आपको ऑर्डर ढूंढना है तो आप रिएक्शन देख के कभी ढूंढ पाओगे? आपको क्या करना पड़ेगा उसका बोलो? एक्सपेरिमेंट करके। अभी नेक्स्ट, ये इतना हो गया। अच्छा, तो बेसिकली मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? कितने लोग ने पार्टिसिपेट किया? तो मॉलिक्यूलरिटी इज व्हाट बेटा? टोटल रिएक्टेंट पार्टिसिपेटिंग, टोटल रिएक्टेंट पार्ट इज टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन, टोटल रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन, टोटल रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन। लेकिन ऑर्डर क्या होता है? इट इज द रिएक्टेंट विच विल डिटरमाइंस रेट। हम दोनों में मैं ही काम कर रहा था ना, तो स्पीड मेरे पे डिपेंड करता था कि नहीं? तो ऑर्डर क्या होगा बोलो? रिएक्टेंट डिटरमाइंस व्हाट बोलो? रेट ऑफ रिएक्शन। तो मतलब दीज आर व्हाट? रिएक्टेंट्स विच डिटरमाइंस, विच टेक पार्ट इन व्हाट? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्लियर है? चलो, कौशल और हमारा हो गया प्रोग्राम। अभी दूसरा प्रोग्राम हम लोग क्या करते हैं, चलो। सीड और साथ दोनों जन ने, कितने लोग ने पार्टिसिपेट किया प्रोजेक्ट में बोलो बेटा? दो जन ने। तो मॉलिक्यूलरिटी कितना हो गया? दोनों जन काम भी कर रहे हैं, दोनों जन। तो ऑर्डर कितना हो गया बोलो? दो। क्लियर है? ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? अब बेटा यहाँ पर कौन है बोलो? कनिष्क। तेरा नाम क्या है बेटा? अनुग्रह।
अनुग्रह, तनिष्क और अनुग्रह दोनों जने ने। अच्छा, दोनों जन ने पार्टिसिपेट किया, मॉलिक्यूलरिटी कितना हो गया बोलो बेटा? बोलो, मॉलिक्यूलरिटी कितना हो गया बोलो? अभी सुनो ना प्लीज प्लीज सुनो। अभी कनिष्क ने कितना काम किया? 50%। और अनुग्रह ने 100% काम किया। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा बोलो? अरे इसने हाफ काम किया ना, इसने पूरा काम किया कि नहीं? तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1.5। ऑर्डर कितना हो जाएगा? मतलब फ्रैक्शन हो गया कि नहीं बोलो? फ्रैक्शन हो गया। 1 क्लियर है? ओके। ए गौर से देखो, अब कौन कौन है बोलो बेटा? प्रेषा एंड श्रिया, दोनों जन ने काम किया। हाँ हाँ बस। अच्छा तो कितने लोग ने पार्टिसिपेट किया? 2। बस अभी चलना, बस टाइम पास नहीं करो। बस प्रेषा एंड श्रिया ने दोनों जने। व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी? कम ऑन 2। अब दोनों जन बोलते हैं, यार कौन प्रोजेक्ट बनाएगा? अच्छा, प्रोजेक्ट बोला कि हमको नहीं बनाने का प्रोजेक्ट हमको बनाने का नहीं है। तो वो लोग ने बोला कि किसी नमूने को ढूंढते हैं। नहीं, वो लोग दोनों जन गए अर्जुन के पास। किसके पास गए? अर्जुन। अर्जुन के पास बोला, ये अर्जुन बोला क्या है? बोला ये बेटा इधर आ। क्या हो गया? बोला कि ना ये हमारा प्रोजेक्ट करके दे दे, जो बनता है तेरे को दे देंगे जा। ओके सुन, अभी ना 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 लिसन, अभी टेल मी बेटा, मॉलिक्यूलरिटी कितना था? 2। लेकिन दोनों जन काम कर रहे हैं क्या? तो ऑर्डर कितना हो गया? ऑर्डर कितना हो गया? लेकिन प्रोजेक्ट तो कंप्लीट करने का है, स्कूल में मार्क्स मिलेगा नहीं। तो वो लोग ने किसके पास गए? एक्सटर्नल फैक्टर के पास गए कि नहीं? एक्सटर्नल फैक्टर के पास गए कि नहीं? अच्छा, रिएक्शन में एक्सटर्नल फैक्टर कौन होता है? कैटलिस्ट, टेम्परेचर, प्रेशर। समझा ये? अब देखो पूरा मैं बता देता हूं, इधर आ जाओ। अभी दिमाग में बैठा, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर समझना है तो क्या दिमाग में रखने का? फुल प्रोजेक्ट। क्या दिमाग में रखने का? ओके। व्हाट वाज मॉलिक्यूलरिटी? सिया बेटा, मॉलिक्यूलरिटी वाज व्हाट? टोटल रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, participating in the reaction. What was order? It is the reactant on which determines the rate of reaction or speed of reaction. नीवा बेटा, what is molecularity? Which concept it is? मैं बोर्ड पे कोई भी रिएक्शन लिखूंगा तो मॉलिक्यूलरिटी देख के बता पाएगी कि नहीं? दिस वाज विच कॉन्सेप्ट? एक्सपेरिमेंटल। मन्नत बेटा, अभी बेटा आप मेरे को बता। मन्नत बेटा यू टेल मी, ये पूरे रिएक्शन में तूने देखा मॉलिक्यूलरिटी तेरा कभी भी क्या था? होल नंबर था ना बेटा? कभी मॉलिक्यूलरिटी कभी भी होल नंबर था? मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो हो सकता है क्या? हे जीरो मतलब रिएक्टेंट में कोई पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। अच्छा, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है बोलो बेटा? नेवर जीरो नॉर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन भी नहीं होगा कभी। ठीक है? इट इज ऑलवेज नॉन इंटीग्रल होल नंबर। ऑलवेज व्हाट बेटा? नॉन इंटीग्रल होल नंबर। नॉन इंटीग्रल मतलब नॉन जीरो होल नंबर। समझा के ना? अच्छा, ऑर्डर तेरा क्या क्या था बोलो सिड बेटा? ऑर्डर क्या क्या था बोलो बेटा? ए भाई, यहाँ पे ऑर्डर होल नंबर, यहाँ पे क्या था? फ्रैक्शन, यहाँ पे क्या था? जीरो। तो ऑर्डर तेरा क्या क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? फ्रैक्शन भी हो सकता है। इजी। अच्छा, मॉलिक्यूलरिटी में हम लोग कभी भी एक्सटर्नल फैक्टर आया था क्या मॉलिक्यूलरिटी में? एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करता? एक्सटर्नल फैक्टर इल है, ये क्या करेगा? लास्ट वाला एग्जांपल लिया था ना, श्रिया और प्रेषा वाला। एक्सटर्नल फैक्टर कौन था बोलो? अर्जुन। राइट ना? तो एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करेगा कि नहीं बोलो? राइट ना? व्हाट आर एक्सटर्नल फैक्टर? अब पूरा दिमाग में कॉन्सेप्ट गया। तो बेटा अगर मैंने बोर्ड पे कोई भी रिएक्शन लिखा है तो आप डायरेक्ट देख के उसका मॉलिक्यूलरिटी बता पाओगे, बट ऑर्डर कभी बता पाओगे क्या? तो अभी आप बोलोगे सर तो हम लोग ऑर्डर के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, ये चैप्टर में आपको सिर्फ है ना 6 रिएक्शन है, वो आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। कितने रिएक्शन है सिर्फ? जिसका ऑर्डर में आपको लिखवा हुआ है। डोंट वरी, पहले दिमाग में कॉन्सेप्ट बेटा, व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी एंड व्हाट इज ऑर्डर? मॉलिक्यूलरिटी इज व्हाट बेटा? नंबर, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट। Order is what beta? It is the reactant on which the rate of reaction will depend. Okay. So molecularity is which concept? Theoretical. Order is experiment. Molecularity can never be zero nor fraction. It is always non-integral whole number. Order can be what beta?
fractional, zero and whole. Molecularity does not depend on external factor. Order will depend on, ये बेटा डिस्टिंग्विश बोर्ड में कम से कम 5 6 बार आया, डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट, मॉलिक्युलरिटी है। लेकिन बेटा बहुत एकदम में ना टेक्स्ट बुक में वो लोग ने पहले क्या दिया है, ऑर्डर दिया है, फिर क्या दिया है, कुछ समझेगा। अभी आपको दिमाग में ये एक्सपेरिमेंट, ये एग्जांपल रखा तो आपको भी आ जाएगा व्हाट इज मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर, बोलो। ठीक है। अच्छा अभी देखो बेटा, मैं तुमको ना पूरा एकदम डिटेल में बताता। अभी मैंने सपोज ऐसा ही लिखा है बेटा, कुछ तो लिखा है यहाँ पे, देखो मैंने आपको ना ऐसे लिख के दे दिया, कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे आपको दिया है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन। कितना रिएक्टेंट नजर आ रहा है टोटल यहाँ पर, कितना रिएक्टेंट नजर आ रहा है, 1 ना। तो मॉलिक्युलरिटी कितना होगा, सपोज बेटा मैंने ऐसा लिख के दिया H2 and I2, कितने रिएक्टेंट नजर आ रहे हैं टोटल यहाँ पर। तो मॉलिक्युलरिटी मतलब कोई भी रिएक्ट, मैंने बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिया तो आप देख के उसका क्या बता सकते हो, बटे ऑर्डर बता पाओगे क्या। अभी देखो इधर पे आ जाओ बेटा, देखो बेटा अभी आप रेट लॉ जैसे मेरे खत्म हुआ नोट्स में, ठीक है ना बेटा। अच्छा मैं एक खाली एक चीज छोटा सा चीज बता देता हूँ, रेट कांस्टेंट में बताना भूल गया, एकदम एकदम चिंतित था बेटा। ये यहाँ पे आपने को क्या मिला था, R इज इक्वल टू वॉट बेटा, के रेस्ट टू, ये रेट लॉ था कि नहीं। चल दीक्षा बेटा, अगर मैंने ये पूरे का वैल्यू क्या ले लिया, ये वाले का 1 ले लिया, इनका वैल्यू कितना ले लिया, तो R तेरा क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू के हो जाएगा कि नहीं, बोलो। R इज इक्वल टू के होगा कि नहीं। अरे इफ आई टेक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट एज यूनिटी तो R विल बी इक्वल टू व्हाट, के ना। तो अच्छा इफ आई वांट टू नाउ डिफाइन K इज माय रेट कांस्टेंट, इफ आई वांट टू नाउ डिफाइन रेट कांस्टेंट, सो रेट कांस्टेंट इज नथिंग बट R, rate constant is nothing but what, R. So rate constant is nothing but rate of reaction, rate constant is nothing but when the concentration of all the reactant is taken as unity. देखो डेफिनेशन भी दे दिया है, when the molar concentration of all the reactant is what। अच्छा ये रेट कांस्टेंट जहां पे लिखा है ना, वहां पे आप ऐसा स्लैश करके लिखो ना, इसका कभी कभी दूसरा नाम भी आता है वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका और एक नाम है, स्लैश करके लिखो स्पेसिफिक रेट, स्पेसिफिक रेट। समझ में आ गया। चलो अभी हम लोग ने क्या पढ़ा था, कॉन्सेप्ट, व्हाट कॉन्सेप्ट वी स्टडीड। नहीं नहीं ये हो गया, अभी रेट कांस्टेंट हो गया। अभी हम लोग ने क्या पढ़ा था, बोलो, मॉलिक्युलरिटी एंड, तो व्हाट वर हैचिंग एग्स और व्हाट मैन। Yeah, and do none. बराबर है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी, परफेक्टली अंडरस्टूड। बेटा तेरा नंबर ग्रुप में ऐड किया हुआ है कि नहीं, नहीं। अच्छा ठीक है कोई बात। मुझे ना खाली 1 2 3 और कौन मिस किया था, बस ये 3 लोग ना, तो 1 2 3 4 4 जन। ए अभी आ जा बेटा, व्हाट वी स्टडीड बेटा, मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर। लुक यार, ओके या हिया बेटा, हाँ या तूने भी मिस किया था भाई, कि तूने वीडियो देखा था ऑनलाइन। हाँ अच्छा, ए मोल्स ऑफ ए, देखो बेटा ये रिएक्टेंट है कि नहीं, बोलो बेटा। तो अच्छा तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, अगर ये 1 होता और ये 1 होता तो 1+1 कितने लोग ने पार्टिसिपेट किया, तो मैं दिस A + B इज व्हाट माय मॉलिक्युलरिटी। सपोज बेटा मैंने ऐसा लिखा रहता, नाइट्रोजन प्लस ऐसा हाइड्रोजन, तो 3 और 1 है तो कितना होता मॉलिक्युलरिटी, बोलो 4। इजी ना बेटा, ओके। इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट, रूहानी ना बेटा, रूहानी बेटा, इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। सक्षम बेटा ये कैसे मिला, दोनों को ऐड किया कि नहीं। अरे बेटा अगर H2 + Cl2 लिखा रहता तो दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हमने ऐड किया कि नहीं, बोलो। तो इट इज द सम ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट। इट इज विच कॉन्सेप्ट, बोलो। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर, बराबर है कि नहीं, वो एक्सटर्नल पे डिपेंड कर रहा था क्या। इट इज नॉन इंटीग्रल होल नंबर, इट कैन नेवर बी जीरो नॉर, इतना समझा क्या।
लेकिन आपको बेटा ये समझने के लिए आप बाजू में यहाँ पे ऐसा लिख दो, स्कूल प्रोजेक्ट ऐसा लिखो, तो आपको क्लिक होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। स्कूल प्रोजेक्ट एग्जाम्पल, मतलब ऐसा एग्जाम में मत लिखना, तो आपको समझेगा व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है। अच्छा अभी बेटा मैंने ना एग्जाम्पल दिए उसके, ठीक है, अब उससे हम लोग पता करेंगे क्या क्या मॉलिक्यूलरिटी किसका क्या क्या है। चलो शुरू करें, आ जाओ इधर। टेन टेन। ओके, अलिश का यहाँ पे देख बेटा, इसके आगे कितने रिएक्टेंट है बोलो, वन, और तो मॉलिक्यूलरिटी कितना हो गया, टू। टू को क्या बोलेंगे, बायोमॉलिक्यूलर। ओके, या बेटा यहाँ पे कितना रिएक्टेंट है, अरे देख लेना ये ईडी, देख लेना इधर एक रिएक्टेंट है, तो क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलरिटी, यूनिमॉलिक्यूलर। बरोबर है। अर्जुन बेटा यहाँ पे कितने रिएक्टेंट है देख, तो तेरे को देख के पता चलता है कि नहीं, इसलिए इसको थियोरेटिकल बोलते हैं, समझा क्या। जनरली बेटा ना बायोमॉलिक्यूलर के ऊपर, ट्राइमॉलिक्यूलर मैक्स, ट्राइमॉलिक्यूलर के ऊपर मॉलिक्यूलरिटी वाले रिएक्शन होते नहीं है। अब फिर बाद में हम लोग ने क्या पढ़ा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए सिंबल क्या है, एन, क्या है। ओके दीक्षा बेटा, अगर तू देखेगी बेटा यहाँ पे तू बोलेगी ए मोल्स था सर, ए मोल्स था, लेकिन यहाँ पे सडनली एक्स और वाई कैसे आ गया, तो ये हम लोग का कौन सा कॉन्सेप्ट था, जब मैंने और कीकू ने एंटर किया था, तो तुमको खाली क्या पता चला था, मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर पर जानने के लिए आप लोग ने मुझे क्या पढ़ा था, एक एक्सपेरिमेंट किया था कि नहीं, यू क्वेश्चन मी और नॉट टेल मी। तो इट इज विच कॉन्सेप्ट बोलो बेटा, एक्सपेरिमेंटल ना, इसलिए यहाँ पे ये रेट लॉ कहाँ से आता था बोलो बेटा, एक्सपेरिमेंट। और ये एक्स और वाई को मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ऑर्डर, क्या मिलेगा। चलो चलो बेटा, ऑर्डर में क्या था बोलो, इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट डिटरमाइनिंग द, इट इज विच कॉन्सेप्ट, इट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर और नॉट, टेल मी। लास्ट वाला एग्जांपल ये दोनों ने लिया था, एक्सटर्नल फैक्टर कौन था, अर्जुन। फिर कभी भी बेटा वो क्या क्या हो सकता था, वो जीरो भी हो सकता था, फ्रैक्शन भी हो सकता था, और क्या हो सकता था, क्लियर है। अच्छा अभी ये एक्सपेरिमेंट ये बहुत इंटरेस्टिंग है। साथ बेटा यहाँ पे देख, यहाँ पे इसके आगे क्या लिखा है बोल बेटा, टू लिखा है, क्या लिखा है, तो तेरे को मॉलिक्यूलरिटी पता चल सकता है, ऑर्डर पता चल सकता है क्या, लेकिन ये ऑर्डर मुझे आप बोलिए सर ऑर्डर आपने जीरो कहाँ से लिखा, बेटा ये हमको एक्सपेरिमेंट से पता चला था, पूरे चैप्टर में आपको ऑर्डर बाय हार्ट करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलरिटी कभी बाय नहीं करना, दिमाग में गया ये। देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो मैंने यहाँ पे लिख के भी दे दिया, डिस्टिंग्विश पढ़ो ये दोनों बेटा, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर। अच्छा एग्जाम में जनरली वो लोग कैसा डिस्टिंग्विश देते हैं, ऑर्डर पहले लिखते हैं और फिर मॉलिक्यूलरिटी, क्यों, क्योंकि टेक्स्ट बुक में पहले वो लोग ने क्या दिया है, हाँ, लेकिन आपको पहले ऑर्डर पता था तो समझता ही नहीं, मॉलिक्यूलरिटी के अंदर ऑर्डर होता है, अब समझा कि नहीं, राइट ना। डिस्टिंग्विश पढ़ लो बेटा, कोई डिस्टिंग्विश में डाउट है क्या बोलो, कोई सैचुरेशन देगा राफ्टा, अभी इतना ब्रेक दिया आधा घंटा ये वो सब, हाँ हाँ तो अंकल वैसे भी केमिस्ट्री पढ़ने वाली मालूम है। हाँ, अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, आई एम नॉट गोइंग टू डू डेरिवेशन टुडे, प्लीज डेरिवेशन में आज नहीं करने वाला, लेकिन मेरे को आज अभी जो पार्ट करना है वो मुझे करने दो, ठीक है ना बेटा। तो प्लीज हाँ बेटा पढ़ना पड़ेगा भाई, दो मिनिमम 2 घंटे का तो क्लास करना, 2 से ढाई घंटा पढ़ना पड़ेगा तभी पोर्शन कंप्लीट होगा। हाँ इसमें ब्रेक ब्रेक ज्ञान गिनेगा ये। चलो अभी बात हो गया ना, अभी छोटा छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ, दिमाग में फिट हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्डर। ओके चलो आज अब बेटा मैं आपको बताते मैंने टेक्स्ट बुक से क्या करवाया, क्योंकि ना वरना आप है ना यहाँ पे कुछ भी देखोगे टेक्स्ट बुक का ऑर्डर सही नहीं है। चलो बेटा देख, टेक्स्ट बुक में वो लोग ने पहले क्या बताया है, डायरेक्टली दे स्टार्टेड विद व्हाट बेटा, डोंट, अभी मैं खाली ऐसा नहीं, अब वहां पे टेक्स्ट बुक मत ओपन करो, खाली आप देखो, टेक्स्ट बुक मत ओपन करो। हम लोग ने डायरेक्ट टेक्स्ट बुक में वो लोग ने कहाँ से स्टार्ट किया बेटा, देख मैंने आपको रेट लॉ बता दिया, ठीक है ना, रेट लॉ में क्या आ गया था, एक्स और वाई आ गया था, बरोबर है। फिर डायरेक्टली वो लोग ने क्या किया है, यहाँ पर ऑर्डर से स्टार्ट कर दिया। अरे कॉन्सेप्ट तो बताओ पहले ऑर्डर का, नहीं बताया ना, फिर बाद में वो लोग बाद में देख मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है, देख फिर देख डिस्टिंग्विश में वो लोग ने ऑर्डर और मैंने, लेकिन पहले आपको क्या बताया था, मॉलिक्यूलरिटी फिर ऑर्डर, लेकिन आप एग्जाम में देख के तो इतना समझेगा ना पहले क्या लिखना है, क्लियर है। ओके यहां से टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे नहीं समझेगा, अभी एग्जाम्पल से पूरा क्लियर हो गया, रिएक्टेंट में जितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो मॉलिक्यूलरिटी होता है, और जिसपे स्पीड डिपेंड करेगा वो ऑर्डर होता है, लेकिन ऑर्डर आपको डायरेक्टली रिएक्शन बोर्ड पे लिख के नहीं पता चलेगा, वो लैब में करेंगे तब हमको पता चलेगा।
अब बेटा ये चैप्टर का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ये वाला। ये बोर्ड में कम से कम एवरी अल्टरनेट ईयर आता है। क्या आता है बोलो बेटा? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो वो भी मैं बेटा उसको समझाने के लिए भी मस्त एक एक्सपेरिमेंट से हम लोग करेंगे बेटा। दिखाई दे रहा है ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर? क्या दिया है बोलो मेरा नोट्स देखने का? चलो बेटा, ए हम लोग बेटा है ना पिकनिक पे गए हैं। कहाँ पर गए हैं? वी हैव गॉन फॉर पिकनिक। ओके, पिकनिक में एक बहुत बड़ा रेसोर्ट है। वी आर एंजॉयिंग इन स्विमिंग पूल। ओ माय गॉड, यहाँ पर क्या है बोल बेटा? ये स्विमिंग पूल है और स्विमिंग पूल के बाजू में ना एक छोटा सा ग्लास पड़ा हुआ है। ओके, ये स्विमिंग पूल पूरा पानी से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? पानी से ही भरा हुआ रहता है वैसे भी। और ये वी आर एंजॉयिंग सम ड्रिंक ऑल्सो हियर। ओ माय गॉड, What? पेप्सी, थम्स अप, या Okay. स्विमिंग पूल एंड दिस इज ग्लास ऑफ वाटर। नाउ ये एग्जांपल याद रखोगे तो पूरा ये कॉन्सेप्ट समझेगा। लिसन लिसन, अब बेटा हम लोग एंजॉय कर रहे थे, बीच में ना लंच टाइम हुआ। लिसन, लंच टाइम हुआ तो हम लोग सब लोग कहाँ पे गए? लंच के लिए। व्हेन वी वेंट फॉर लंच एट दैट टाइम वन पर्सन केम। उसने क्या किया? स्विमिंग पूल में से एक बकेट भर के पानी बाहर फेंक दिया। कितना? एक बकेट भर के पानी बाहर फेंक दिया। और ग्लास में से थोड़ा, और एक ग्लास में से आधा पानी बाहर फेंक। स्विमिंग पूल में से एक बकेट बाहर फेंक दिया। हमने ये देखा नहीं। अरे बेटा सुनना भाई, खाली सुनेगा तो कॉन्सेप्ट आ जाएगा। हमने ये देखा। अब क्या हुआ? हम लोग वापिस आए। हम लोग ने स्विमिंग पूल को देखा और ग्लास ऑफ वाटर को देखा। कहां पे आपको डिफरेंस इन वाटर लेवल नजर आएगा? बोलो, वेयर यू विल सी द डिफरेंस इन वाटर लेवल? ग्लास और स्विमिंग पूल? ग्लास। क्यों रे? क्यों? अबे स्विमिंग पूल में वाटर क्या था? लाल। तो उसमें से अगर एक बकेट पानी फेंका तो हमको वाटर फर्क दिखेगा नहीं। तो व्हेन एनीथिंग इज इन एक्सेस, इफ एनीथिंग इज इन व्हाट, उसमें हमको डिफरेंस नजर आएगा। वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्या रहेगा? हमेशा। लेकिन जब छोटा चीज रहता है उसमें से चेंज होगा तो हमको चेंज नजर आएगा कि नहीं? ओके, वेरी गुड। अब मैं तुमको बता देता हूँ एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। सुन लो अच्छी तरह से। प्रेशा ईडी यहाँ जो इन एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा सुन ले। दो रिएक्टेंट आपको दिया रहेगा, एक के नीचे कभी भी बाय डिफॉल्ट अगर किसी के नीचे एक्सेस लिखा है, मतलब एक्सेस आपका क्या है बोलो बेटा? स्विमिंग पूल। ठीक है ना बेटा? राइट, ओके। अच्छा, अभी इसमें कितने बंदे थे इन्वॉल्व? दो। तो रेट मेरा किस पास दोनों पे डिपेंड करना चाहिए था कि नहीं अलिश का? ये देख, R इज इक्वल टू के एक्स एन इंटू वाई। लेकिन अब तुम मुझे बताओ कौन कांस्टेंट है बोलो? कौन कांस्टेंट है बोलो? स्विमिंग पूल क्या होगा? तो ये तेरा कांस्टेंट हो जाएगा, ये वाला पार्ट खाली। अच्छा, के बी क्या है? कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट विल बी व्हाट? न्यू कांस्टेंट के डैश। कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट विल बी तो के डैश। तो अभी बेटा मैं यहाँ पे के और ये वाई के जगह पे क्या लिख दूंगा? के डैश। क्या लिखा मैंने बोलो? तो अभी मेरा रेट कितने पे डिपेंड कर रहा है? एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है या दो पे डिपेंड कर रहा है? Whenever two reactants are given, whenever two reactants are given and below one reactant, if it is written what? Excess. If it is written what? Then my rate will depend only on one reactant. It will depend only on. I was thinking, मैं क्या सोच रहा था कि भाई दोनों पे डिपेंड होना चाहिए, लेकिन वो हकीकत में किस पे डिपेंड करता है? हाँ, द रिएक्शन, वो दिखने में क्या दिख रहा था मुझे? सेकेंड ऑर्डर। द रिएक्शन विच अपीयर्स टू बी व्हाट? हायर ऑर्डर। बट वो फाइनली अभी क्या हो गया? एक ही पे डिपेंड कर रहा है। But it appears as what? First order. Such a reaction are known as pseudo first order. Pseudo means false first order. क्यों? क्योंकि दिखने में वो क्या दिख रहा था मुझे? सेकेंड ऑर्डर। पर हो क्या गया बोलो बेटा? आपको कैसे पता चलेगा कोई भी pseudo first order है? दो रिएक्टेंट लिखा होगा और एक के नीचे क्या लिखा रहेगा? What will be written? Excess. What will be written? Excess. Clear है? तो रिएक्शन which appears to be what? Higher order.
but behaves as what? First order. Yeah, first order is known as pseudo. बोर्ड का ये फेवरेट क्वेश्चन है. What they ask, बेटा, define pseudo first order reaction. And secondly, give example. पूरे सिलेबस में 2 ही एग्जाम्पल है. पूरे सिलेबस में आपको कितने एग्जाम्पल है? सिर्फ 2. What are these 2 example? हेलो, कौन से 2 एग्जाम्पल है? देख लो. किधर जा रहे हो तुम लोग? Don't force me to use biological words. तो क्यों खेलने का वो सब चीजें? तू बैठना भी, अंदर जाना, तो उसको बाहर बैठा. Certain reactant which reaction of expected to be of higher order but follows which order? First order. तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? Pseudo first order. अभी बेटा मैंने तुमको देखिए एग्जाम्पल भी दे दिया. 2 ही एग्जाम्पल बाय हार्ट करना है. चले यहाँ पे आ जाता. देख मैं तुमको बता देता फटाफट. यहाँ पे देख. ये क्या है? शुगर. शुगर का फॉर्मूला क्या था? C12H22O11. इसके अंदर मैंने पानी डाला. क्या डाला? तो ये मुझे क्या देगा बेटा? यहाँ पर देखो गौर से. ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. ग्लूकोज एंड व्हाट? फ्रुक्टोज. वो सब जाने दो बेटा. अभी ये ना इसके नीचे मैंने क्या लिखा है? इसको शुगर भी बोलते हैं या केन शुगर भी बोलते हैं या सुक्रोज. ये क्या था? एक्सेस. क्या था? तो चलो बेटा अपना रेट क्या होना चाहिए था? बोलो. R=K. दोनों पे होना चाहिए था कि नहीं? बोलो. अरे बोलो रे पब्लिक. अरे सॉरी. लेकिन आप मुझे बताओ, ये एक्सेस है भाई, तो ये स्विमिंग पूल हो गया कि नहीं? तो ये के और ये दोनों कांस्टेंट हो जाएगा. तो इसके जगह पे मैं क्या डालूंगा? नया कांस्टेंट के डैश. तो अपना भी क्या हो जाएगा? बस. तो अभी ये हो क्या गया? कितने पे? इसका स्पीड अभी सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? 1 पे. हकीकत में होना कितना चाहिए पे था? 2 पे. क्लियर है? आर यू गेटिंग इट? हेलो. मारूंगा ना ऐसा. करता हूं बेटा प्लीज. मैं आप मेरा सुनो, मैं आपका सुनूंगा बेटा. ठीक है चलो. ये देख बेटा, एग्जाम में आपको पूरे सिलेबस में 2 ही एग्जाम्पल बाय हार्ट करना है. इन्वर्जन ऑफ केन शुगर. दिखाई दे रहा है? इसको ये केन शुगर, सुक्रोज सब कुछ बोलते थे. ये देख बेटा, ये एक्सेस लिखा रहेगा. अच्छा एमसीक्यू में कैसा आएगा बेटा? एक्स और वाई लिखा रहेगा और किसी के नीचे एक्सेस लिखा रहेगा और लिखा रहेगा वेदर इट इज फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर. अगर एक्सेस किसी के नीचे तो क्या होगा? स्यूडो फर्स्ट. आर यू गेटिंग इट? नेक्स्ट एग्जांपल है एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ यस्टर. एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ यस्टर. अच्छा कुछ मत देखो, खाली ये देखो. ए प्रेशर, ये देखिए 2 रिएक्टेंट है कि नहीं? एक के नीचे एक्सेस लिखा है कि नहीं? हकीकत में मेरे को क्या लगता है? पहले रेट शुड डिपेंड ऑन 2, बट दिस इज एक्सेस, दिस इज के कांस्टेंट. तो यहाँ पे के डैश. अभी फाइनली कितना दिख रहा है? बोलो बेटा. ए. तो तुम्हारा किस पे डिपेंड करेगा? बोलो बेटा. समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? बोलो ना. इजी. सीडो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या एग्जाम्पल याद रखोगे? चाहिए तो बाजू में लिख लो. यहाँ पर क्या लिखोगे इसको समझने के लिए? एग्जाम्पल स्विमिंग पूल एंड ग्लास ऑफ वाटर लिख लो. तो लॉजिक तुमको मैंने बता दिया. If there are 2 reactant and if below 1 reactant, if they have written excess, then it is always going to be what? Pseudo. Clear है? ये भाई तू तेरा नोट्स लेके जा सब 11 12 का. मैं दे देता हूँ तेरे को अभी के अभी. मिला क्या? बोलो. ये हो गया. अभी आप मेरे को बताओ. ये देखो, ये टेक्स्ट बुक में कहां पर है? ये देखो. बेटा तुम्हारे लिए मैंने ना ड्यूरेशन ज्यादा रखा है क्लास का. आप लोग है ना थक जाते हो. 1-2 घंटे में, 2 घंटे में आपकी बैटरी डाउन हो जाती है. हाँ तो आदत डालना पड़ेगा. बाकी क्लास में 6-6 घंटा बैठाते, वो चलेगा क्या तुमको? सर मतलब ऐसे क्लासेस, दूसरे क्लासेस विच आर एक्सपेक्ट. हाँ वो इंटीग्रेट. हाँ वही बात. हाँ हाँ बस बस. वेरी गुड बेटा, आंखों में आंसू आ गए. वेरी नाइस. अच्छा बेटा यहाँ पे ना, यहाँ पे ये एक्सेस लिखना भूल गए. यहाँ पे डाल दो. मैं आपके बुक में होगा शायद. समझ में आ गया कि नहीं? बोलो. यहाँ पे हाँ ये लिखा है ना. पेज नंबर तुमको देखने का कहाँ पर था? ये पेज नंबर इज 130. लेकिन आप मेरे ये नोट से पढ़ना. हैंड रिटन नोट्स दिया ना, उसमें से पढ़ना. तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आएगा. ये देखना स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर पेज नंबर 130. अच्छा अभी इसका आंसर आप ओरली लिख दो.
इसके नीचे देख एक्सेस लिखा है कि नहीं, तो ये कौन सा होगा, कैन इट बी सुडो, बोलो यस, लिख दो वहां पे यस। अरे मैंने नोट्स में आपको ये एग्जांपल दिया है पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, बराबर है कि नहीं, बोलो ओके। अब बेटा ना आपको मैंने एक बोला था कि हमको बेटा ऑर्डर सिर्फ बाय हार्ट करना पड़ेगा। ऑर्डर क्या करना पड़ेगा, तो आपको मैं खाली ना दो जो मैं आपको लिख के भी देने वाला हूँ, मैं ग्रुप में लिख के सेंड भी करने वाला हूँ। ओके, जीरो ऑर्डर वाले एग्जाम्पल कौन कौन से तुमको मैं बता देता हूँ। जीरो वाले ये बाय हार्ट रखना, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, मॉलिक्यूलरिटी इसका कितना है देखो, दो, बट वो कौन सा ऑर्डर है बोलो बेटा, जीरो ऑर्डर। दूसरा कौन सा है, डिकम्पोजिशन ऑफ व्हाट, N2O, दिख रहा है ये बाय हार्ट करना है खाली नाम आपको। और तीसरा कौन सा है, डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फाइन। तीन एग्जाम्पल है पूरे सिलेबस में, आपको सिर्फ तीन ही एग्जाम्पल जीरो ऑर्डर के, कौन कौन से बोलो बेटा, डिकम्पोजिशन ऑफ PH3 को क्या कहते हैं, फॉस्फाइन, याद रहेगा। अच्छा इसमें क्यों देख, एक्सटर्नल फैक्टर कौन था, टंगस्टन, यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर कौन था, याद आ रहा है। अरे ये दोनों काम कर रहे थे ना, प्रेशर, ये कौन थी, श्री, और एक्सटर्नल फैक्टर, मतलब जीरो ऑर्डर हुआ कि नहीं, बोलो कितने एग्जाम्पल है बोलो बेटा, डिकम्पोजिशन ऑफ व्हाट, बोलो फॉस्फाइन, देन नाइट्रस एसिड, एंड देन डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। तीन एग्जाम्पल है जीरो ऑर्डर के, याद रहेंगे, बोलो। इसमें भी प्लेटिनम कैटलिस्ट होगा। फर्स्ट ऑर्डर के कितने एग्जाम्पल है वो मैं बता देता हूं, फर्स्ट ऑर्डर के पूरे सिलेबस में, डिकम्पोजिशन ऑफ व्हाट, H2O2, ये फर्स्ट ऑर्डर, पेज नंबर है 120। मैं आपको ना ऐसा दोनों लिख के भी भेजने वाला हूं। ये डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 फर्स्ट ऑर्डर, बाय हार्ट करना पड़ेगा ऑर्डर, कोई ऑप्शन नहीं है। और सीडो फर्स्ट ऑर्डर वाले कौन कौन से थे, अभी हम लोग ने किया, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर एंड एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये मैं पूरा लिख के भी आपको देने वाला हूं अलग से। खाली है ना बेटा अभी फ्रैक्शनल ऑर्डर कौन सा है, फ्रैक्शनल ऑर्डर, क्योंकि ना MCQ में आता है, CET में, इसके लिए मैं बता रहा हूं, बाय हार्ट करना पड़ेगा। ये देख, ये एसेटल्डिहाइड वाला रिएक्शन आएगा ना, वो कौन सा है बोलो बेटा, व्हाट इज द ऑर्डर, 3/2। पेज नंबर तुमको बताओ क्या, 124 पे आ जाओ। डिकम्पोजिशन ऑफ एसेटल्डिहाइड व्हाट बेटा, व्हाट इज द ऑर्डर, 3/2 और 1.5, 3/2 और 1.5। फ्रैक्शनल वाला एक ही आपको बाय हार्ट करना है बस, क्लियर है। अच्छा अभी ये MCQ में आता है, इसलिए अपने को बाय हार्ट करना पड़ेगा। MCQ में बोला डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, डिकम्पोजिशन ऑफ एसेटल्डिहाइड 1.5 ऑर्डर, फिर डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फाइन, अमोनिया एंड N2O जीरो ऑर्डर, फिर एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एंड एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ, सॉरी, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, सीडो फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर है, क्योंकि MCQ में ना ऐसा थियरी वाला छोटा छोटा पार्ट, ये बाय हार्ट वाला पार्ट था, इसलिए मैं तुमको बार बार हाईलाइट करवा रहा हूं। ओके राइट। अभी आपको सिर्फ छोटा मैं एक पॉइंट करवा के आई लीव यू, कि आपको ये बाद में करना है, बोलो सबका पावर है करने का कि नहीं है, थक गए, खत्म हो गए। अच्छा खत्म हो गई ना तो अच्छा अच्छा एक मिनट, खत्म हो गई कोई बात नहीं, आई विल ऑल्सो कॉपरेट, यू ऑल्सो कॉपरेट विथ मी, बट उससे पहले खाली एक छोटा सा चीज देख लो। नहीं नहीं मैं कुछ नया नहीं करवा रहा हूँ, नया कुछ नहीं करवा रहा हूँ, मैंने खाली आप लोगों को क्या करवाया वो देख लो। अपना रूल है ना, वी ऑलवेज फॉलो द टेक्स्ट बुक, ठीक है। लुक बेटा, वी डिड दिस टुडे, व्हाट इज द रिलेशनशिप, ये डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन वाला, रेट लॉ वाला, देन then we did this today, pseudo first order and give example, then we did this and this। ये इसका मैं नोट्स दूंगा बेटा, जिसमें प्रिंटेड नोट्स हैं, जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर्स है बेटा। मन्नत जन्नत क्या नाम है, मन्नत व्हाट, जैन। फिर या
ठीक है ना बेटा, आज हम लोग ने यहां तक किया है न्यूमेरिक। बेटा नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, उसमें हम लोग पूरा न्यूमेरिकल्स वगैरह करने वाले हैं। नहीं, सैटरडे टेस्ट और क्लास दोनों होगा, पोर्शन कंप्लीट कराने का है। ठीक है, चलो देन, बाय बाय एवरीबॉडी। अच्छा रुक जा, मेरे को है ना चार, तुम लोग कौन है ये चार